हाँ जी. A very good evening to all of you. Myself, CA Anahita Jain. I welcome you all today to a very interesting virtual live seminar on wealth creation through mutual funds, which is organized by Committee on Financial Markets and Investor Protection (ICI). Now, I would like to invite CA Charanjot Singh Nanda sir, our respected Central Council member, who is presently chairman of various committees like Financial Markets and Investor Protection, Committee on Information Technology of South Asian Federation of Accountants, and Digital Accounting Assurance Board of ICI. Sir is also presently Vice Chairman of Board of Internal Audit and Management Accounting ICI. Sir served as Chairman of various committees like Committee on Banking, Insurance, Women Members Empowerment, Members in Industry, and many more. Sir also served as Vice Chairman of various committees like Committee on Public Finance, Government Accounting, CSR, Research Committee, and many more. Sir was also member of Quality Review Board, SEBI Advisory Committee, Southern Asian Federation of Accountants Committee, and various other committees. Sir also had been convener of expert group constituted by Ministry of Corporate Affairs on investor protection. Sir had been invited as guest speaker, guest faculty, and program coordinator at various seminars and conferences in India as well as abroad. The list is very long. So thank you so much, sir, for giving us this wonderful opportunity. Sir, please say a few words. Thanks a lot, Anaita ji. My younger brother and the Reverend Speaker of the day, C. Anand Sabharwal, PD Gaver, Animesh Singh, Ashok, and C. Anita Jain, the moderator of the session. My heartiest compliments, and I welcome all the participants who have come here to go home more enlightened. Ladies and gentlemen, times are very exciting. The markets are at all-time high. I remember the days when people used to say, stock market में लखपति बनना बहुत आसान है, provided आप पहले से करोड़पति हो. People used to say that if God was to invent something which could confuse human minds, he could not have invented something better than the trade and terminals. But all these things have belied. Yesterday, the market closed at all-time high, not only Indian markets, BSE, NSE, but international markets, Hensec, Nikkei, Nasdaq, Dow Jones, all across, CAC, DAX, all across. The world now is in the bull grip. But one has to be cautious when one trades during bull times. You may buy at higher valuations and ultimately keep reeling under pressure because the stocks may go down. And the best remedy available is mutual funds. People who don't have time, who have limited fund, but want to employ experts to invest for them. Mutual fund and systematic investment planning is the best bit for them. So, ladies and gentlemen, today we have called one of a very enterprising member of our institute, C. Anand Sabharwal, who hails from Chandigarh, city beautiful, to take into account, to explain to members how mutual funds can be beneficial in their journey of creating value and worth through investment in stock markets. Mr. Sabharwal has a great background, a great experience in helping clients create value and worth. And we have the moderator also from Chandigarh, C. Anahita Jain. I will not stand between you and the speaker, but I would like to tell you that institute is going great gears. I'm also the chairman of Digital Accounting and Assurance Board. And I want to tell you that 1st July 2023, forensic standards, first time in the entire world, have been made mandatory under the aegis of the Institute of Chartered Accountants of India. We are the first in the world to promulgate forensic standards. We call them forensic accounting and investigative standards, which have been made mandatory from all assignments starting after 1st July 2023. So, ladies and gentlemen, it is time to say goodbye. And there is a couplet which says, बातें कहीं से भी शुरू हो, बातें कहीं से भी शुरू हो, मुस्कुराहटों पे खत्म होनी चाहिए. हमारी बातें मुस्कुराहटों से शुरू हुई और मुस्कुराहटों पे खत्म हो रही हैं. We started with smiles, we end with smiles, with a vision to create value and worth for the entire investing community in India.
under the pioneership of the Committee for Markets Protection under the aegis of the Institute of Chartered Accountants of India, which was set up by an Act of Parliament way back on 1st July 1949, when the most important document to the democracy, the Constitution, was not adopted. All of us are aware that the Constitution to this great country was adopted on 26 January 1950. The pertinent question that arises is, what prompted the Constituent Assembly to set up an Institute of Chartered Accountants of India when its own democratic setup was not in place? The answer is very candid, very simple, very forthcoming. They were looking for a disciplined band of soldiers to steer this country out of confusion. And there we are, chartered accountants, the financial soldiers to this greatest democracy of the world, India. My great compliments to the Speaker, to the office, to Madam Anita Jain, to technical support, and all people who have come here to go home more enlightened, putting at rest all the doubts that may have crept over the years. Wishing a great luck to this session. Thanks a lot. Anita, the dice is all yours now. Thanks, Sabharwal sir, for coming and joining this session. Bye-bye. Have a nice evening. Sir, please stay for 5 minutes for me, sir, please. I will. Please carry on. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing so much knowledge with us in such a wonderful manner. Now, I would like to invite CA Anand Sabharwal, sir, our guest speaker for today's session on wealth creation through mutual funds. Sir is a practicing chartered accountant and also a certified financial planner from Financial Planning Standards Board, USA, with distinction, and now specializing and advising people in the field of personal financial planning and investment consultancy. Sir had gained rich experience in the fields of portfolio management, investments, mutual funds, and insurance by joining Kotak Mahindra Group and worked there in various positions. Sir is currently working passionately for spreading financial literacy through various free educational webinars and seminars. Sir, please start your presentation. Thank you, ma'am. Thanks. Good evening, everyone. First of all, my sincere thanks and gratitude to Committee on Financial Markets and Investor Protection, ICI, Chairman CA Charanjot Singh Nanda ji, and for inviting me to share my knowledge and experience today's topic. And also thank you to CA Anita Jain ji and the support team, PD Giver ji, Ashok ji, Animesh ji, everybody present here, who are here, who have organized this beautiful session, and who are here to hear this deliberation today. दोस्तों मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन से। क्या आप मेरे से एग्री करेंगे कि आप कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो कमाते हैं उसको आप मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, और आप उसको कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। क्या आप मेरे से एग्री करेंगे कि आप कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस पैसे को आप कैसे संभालते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि पैसे को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को कमाने से, क्योंकि अगर हमारी कमाई कम है और अगर हम उस कमाई को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन क्रिएट वेल्थ। एंड ऑन द अदर साइड, इफ वी आर अर्निंग हैंडसमली and we are spending lavishly and we are not saving or investing for our financial future, so that is a bad thing. तो पैसे को संभालना, पैसे को ठीक जगह पे इन्वेस्ट करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट जैसे कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम बात करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स की, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की, मार्केट्स की, वॉलेटिलिटी की, एंड ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि वी ऑल आर अर्निंग गुड मनी, अर्निंग वेल, बट अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट को ठीक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसको ठीक डायरेक्शन, ठीक दिशा नहीं दे रहे हैं अपने पैसे को, तो हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो उसके लिए ही ये आज का वेबिनार है। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय पीपीटी। Am I PPT visible? Yes, yes. Okay, thank you. तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में
we don't invest for ourselves, we keep the money for need of our family first. हम अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैमिली के लिए हम अपनी सेविंग करते हैं. एंड व्हाट इज सेविंग? बेसिकली सेविंग इज अ सेक्रीफाइस ऑफ आवर प्रेजेंट वांट्स फॉर आवर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर. हम जो भी आज की डेट में जो भी हम खर्च कर सकते हैं, जो भी हम अपना लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा ना थोड़ा डेफर करते हैं, उसको थोड़ा फॉरगो करते हैं, ताकि हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएं, अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे जनरेशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर पाएं. So saving is basically sacrificing. So, but saving is not enough. We have to invest our savings, and we have to invest in the right direction so that we can match the inflation, we can beat the inflation. So we have to, you can say कि we have to choose our investment options, investments very thoroughly and very wisely. So if I talk about Indian culture, why we save? We save for our retirement, we save for marriage, education, ड्रीम होम, वेकेशन. हम अपने गोल्स, हमारे जो डिफरेंट फाइनेंशियल गोल होते हैं, इसके लिए हम अपनी सेविंग करते हैं, ठीक है. एंड बट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट, वी एक्सपेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सपेक्ट सेफ्टी ऑफ आवर मनी, दैट आवर मनी शुड बी सेफ एंड सिक्योर. अपनी हमारी जो मनी है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट. सेकंड, इट शुड बी टैक्स एफिशिएंट, कि टैक्स काट के जो हमारे पास पैसा है वो कितना पैसा आ रहा है, इसके ऊपर टैक्सेशन क्या आ रही है. थर्ड, इट शुड गिव अस अ रेगुलर रिटर्न, ठीक है. इट्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमेशा ग्रो करता रहे, हमें उसकी एक रेगुलर रिटर्न आती रहे. एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इजी लिक्विडिटी. लाइक आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो आपका पैसा है वो आपका लिक्विड होना चाहिए, कि अगर गॉड फॉरबिड इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसी, इन इमरजेंसी और एनी लाइफ प्लान चेंज, वो पैसा आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल हो. तो इजी लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, जैसे सेफ्टी जरूरी है, टैक्स एफिशिएंसी जरूरी है, रेगुलर रिटर्न जरूरी है, इजी लिक्विडिटी शुड बी देयर. कहीं हम पैसा इन्वेस्टमेंट में कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट या किसी इंश्योरेंस में ऐसे पैसे ना डाल दें कि अगर हमें रिक्वायरमेंट आए तो हमें अपना ही पैसा वापस ना मिले, अपना ही पैसा हमारे काम ना आए. तो इसलिए हमें लिक्विडिटी को भी हमेशा ध्यान रखना है. तो जैसे कि वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर हैं मिस्टर वॉरेन बफे फ्रॉम यूएसए, उनके 2 रूल्स सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, कि वो कहते हैं कि रूल नंबर 1 इज नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, कि पैसा कभी गंवाना नहीं है, पैसा का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए. और दूसरा रूल है कि एक पहले रूल को आपने हमेशा याद रखना है. तो आपको अब जब आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मार्केट में रिस्क भी है और आपके इन्फ्लेशन भी आपके साथ चल रही है. तो अगर मैं इसको शुरू करूं, इन्फ्लेशन से इसको शुरू करूं, कि अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज आपके पास 100 रुपीज है और वो आपने जो 100 रुपीज है वो अगर आपने किसी सेफ में डिपॉजिट में रख दी है, तो क्या उसकी वैल्यू इंटैक्ट रह पाएगी? क्या उसकी परचेजिंग पावर इंटैक्ट रह पाएगी? रुपीज 100 नोट kept in a locker is safe, but value of the same rupees 100 will be less after 10 years. तो उसकी परचेजिंग पावर को हम इंटैक्ट नहीं कर पाएंगे. 100 रुपए को तो हमने बचा लिया, 100 रुपए हमारे पास है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी ईयर टू ईयर. उसकी वैल्यू को नहीं हम सेव कर सकते, वो सिर्फ हम उस नोट को सेव कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये अगर मैं हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन की बात करूं, तो 1979 जब से सेंसेक्स का जन्म हुआ तब से अगर मैं ये इन्फ्लेशन का मैंने डेटा लिया है, तो इसमें क्या है कि 1979 से आप देखिए कि डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या इन्फ्लेशन आपका रहा है. तो ये जो इन्फ्लेशन आपका रहा है 1979 से लेकर 2023 तक, तो ये इट रेंजेस फ्रॉम यू कैन से 4% टू 11-12%, अलग अलग साल में अलग अलग इन्फ्लेशन रही है. तो अगर हम इस इन्फ्लेशन का अगर एवरेज निकालते हैं पिछले अपना 44-45 ईयर्स का, तो ये इन्फ्लेशन जो हमारी एवरेज है 7.59% एवरेज रही है 1979 से लेकर टिल डेट. अगर हम इसका एक एवरेज इन्फ्लेशन हम इसका निकालते हैं, तो ये हमारे को एक एवरेज इन्फ्लेशन है कि अगर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जो भी हमने इंश्योरेंस करी है, जो हमें उसके ऊपर रिटर्न आ रही है, और रिटर्न भी क्या कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आ रही है, क्या वो इस एवरेज को या इस इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही है? क्योंकि बीच में ईयर देखिए 2013 में देखिए 11% तक इन्फ्लेशन है, 2017 में 3.33% इन्फ्लेशन है, 1983 में 11.87 की इन्फ्लेशन है. तो ये एवरेज इन्फ्लेशन को क्या हम बीट कर पा रहे हैं? तो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, इन्फ्लेशन इज अ रियल डेविल, बिकॉज इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी एवरी ईयर. तो अगर मैंने 1979 में अगर 100 रुपया अगर अपने वोल्ट में रख दिया होता सेव करके बचा के उसको सेफ लॉकर में डाल दिया होता, तो अगर आज मैं 100 रुपए को निकाल लूं तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सिर्फ 3 रुपए रह गई है.
तो 100 रुपए का पड़े पड़े 3 रुपए उसकी वैल्यू रहेगी। उसकी परचेजिंग पावर को मैं कभी भी इंटैक्ट नहीं कर सकता अपनी मनी की वैल्यू को, जब तक कि मैं उसको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मेरे पास नहीं आती, जब तक कि मैं उसको इन्वेस्ट नहीं करता किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी में, किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो कि मेरी इन्फ्लेशन को बीट के, अदरवाइज जो कि है कि मेरे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, इरोड हो रही है, एंड आई कैन नॉट सेव परचेजिंग पावर ऑफ माई मनी। तो अगर मैं, आप ये देखिए कि रियल रिटर्न एक बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, रियल रिटर्न जो है कि आपको, जैसे अगर मैं लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज इन्फ्लेशन लूँ तो ये 6.17 के आसपास है। अगर मैं प्रेजेंट एफडी का रेट अगर लूँ, सीनियर सिटीजन के रेट्स वगैरह सभी मिला के, तो 7.25% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एफडी का। तो आपका जो रिटर्न आया है, जो आपको एफडी ने रिटर्न दिया माइनस उसमें से इन्फ्लेशन के, तो रियल रिटर्न 1.08% है। ठीक है, लेकिन ये भी रियल रिटर्न नहीं है, अभी इसमें से टैक्स भी लेस होगा जो एफडी के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। तो और ये जो रियल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, दैट इज मच मोर देन दिस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो जो गवर्नमेंट का जो फिगर आती है, वो सीपीआई की जो फिगर आती है, वो एक रोटी कपड़ा और मकान की इन्फ्लेशन है। तो जिस लाइफस्टाइल में हम रहते हैं, जो हमारी इन्फ्लेशन है, दैट इज मच बिगर देन द इन्फ्लेशन रेट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें देखना पड़ेगा तो हम कैसे बीट करेंगे। तो अगर मैं ये जो इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट की फिगर अगर फिलहाल उसी के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, तो मेरे को जो रियल रिटर्न है वो 1.08% है। लेकिन इसको हम देखेंगे कि अगर इसमें से अगर हम आगे इसको टैक्स को भी लेस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो पहले क्या होता था कि अर्लियर क्या होता था कि ये हमारा क्या होता था कि अगर आज से 25-30 साल पहले की बात करें, तो ये टारगेट होता था रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे फैमिली होती थी, ऐसे उनका लाइफस्टाइल होता था, ऐसे स्कूटर वगैरह पे लोग जाते थे। तो आज की डेट में जो है ये सब बदल चुका है। अगर मैं आज की अगर बात करूं तो क्या हालात थे और आज की डेट में क्या कंडीशन है, तो आज ये है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, तो आज की डेट में क्या है कि आज के हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं कि हमारे इंटरनेशनल वेकेशन भी हम कर रहे हैं, सभी के पास गैजेट्स हैं, सभी के रूम में एसी हैं, सभी के पास गाड़ियां हैं, सभी के अपने अपने एक एक लाइफस्टाइल है, सभी के अपने एक्सपेंस हैं। तो आज की डेट में इतने ज्यादा हम चेंज हो चुके हैं, वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो रोटी और कपड़ा और मकान से हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ काफी वाइज रहना पड़ेगा, काफी थॉरो होना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे लोगों ने इन्फ्लेशन नहीं देखी थी, ऐसी इन चीजों की इन्फ्लेशन नहीं देखी थी जो आज की डेट में, जैसे इंटरनेशनल है, गैजेट्स एंड एवरीथिंग है, आज की एजुकेशन कितनी महंगी है, मैरिज एंड रिटायरमेंट कितना महंगा है। तो उस टाइम पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उससे काम चल जाता था। मतलब पुरानी जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो पुराना हमारे इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है, तो वो चल जाता था। तो लेकिन आज की डेट में अगर हमने इस स्टाइल को अडॉप्ट करना है, इस स्टाइल को मेंटेन करना है, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हाउ टू कीप योर मनी सेफ। फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ये लाइफस्टाइल हमारी इन्फ्लेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी देर में आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपका जो डबल हो रहा है, तो अगर आप देखिए कि अगर आपके किसी फैमिली के खर्चे जो है 5 साल में डबल हो रहे हैं, तो इन्फ्लेशन 14.4% के आसपास है, उनकी अपनी पर्सन इन्फ्लेशन फिगर। ये आपकी पर्सन इन्फ्लेशन फिगर है कि जो आपका ये खर्चा आपका जिस रेट से आपका बढ़ रहा है। अगर आपके खर्चे 6 साल में डबल हो रहे हैं तो 12% का आपका इन्फ्लेशन रेट है। अगर आपके 7 साल में खर्चे डबल हो रहे हैं तो 10% आपका इन्फ्लेशन रेट है। तो इन्फ्लेशन रेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो तो इन्फ्लेशन रेट इन्होंने लास्ट मंथ के, अगर 12 मंथ की मैंने एवरेज निकाली, वो 6.17 है। तो 6.17 तो अपना इन्फ्लेशन रेट है नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारे एक्सपेंसिव है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी फैमिली के जो एक्सपेंस है वो 7 ईयर्स में जाके डबल हो रहे हैं। तो आप अपना बजट उठा के देखिए कि आज हम 23 में 17 की अगर हम बात करें, उस टाइम क्या एक्सपेंस थे, आज क्या एक्सपेंस है। तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज क्या है कि 5 या 6 साल में हमारे खर्चे डबल हो रहे हैं। तो जो हमारी रिटर्न आ रही है, जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, ये जो आपका पर्सन इन्फ्लेशन रेट है, आप अपना पर्सन इन्फ्लेशन देखिए कि अगर आपका 5 साल में खर्चा डबल हो रहा है तो 15%, 14.5% आपका रेट है। अगर आपका 6 साल में डबल हो रहा है तो ये आपका 12% है। डोंट गो बाय इन्फ्लेशन फिगर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैलकुलेट योर ओन इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने अपनी इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, ये एक एक थंब रूल है, फाइनेंस का थंब रूल है। 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन विच योर एक्सपेंसेस गेट डबल योर इन्फ्लेशन नंबर। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 12% आपका इन्फ्लेशन रेट है, 6 साल में आपका खर्चा डबल हो रहा है, तो 72 डिवाइड बाय 6 इजिकल टू 12% इज योर पर्सन इन्फ्लेशन नंबर। तो आप अपना पर्सन इन्फ्लेशन नंबर ऐसे निकाल सकते हैं। उसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे अपना
रिटर्न्स को कि आपको रिटर्न व्हाट रिटर्न्स पोस्ट टैक्स रिटर्न्स यू आर गेटिंग, वेदर दैट रिटर्न्स आर बीटिंग इन्फ्लेशन और एटलीस्ट इक्वल टू इन्फ्लेशन, एंड इफ इट इज बीटिंग इन्फ्लेशन देन इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू कि आपको कितनी रिटर्न आ रही है, उसमें से टैक्स काट के इन्फ्लेशन अगर हम आपकी परसेंट इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो आपके हाथ में क्या बचता है, या कुछ नेगेटिव रिटर्न है, या आप ब्रेक इवन कर रहे हैं, या पॉजिटिव रिटर्न है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो बी वेरी वाइज विद योर इन्वेस्टमेंट्स, और आज हमें इसको जागना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। अगर मैं अब एफडीज की बात करूं कि हिस्टोरिकल एफडी रेट्स क्या रहे हैं, ये मैंने रिसर्च करी है। हिस्टोरिकल एफडी रेट्स के ऑन एन एवरेज जो 99 2000 में आप ये देखिए कि लोअर रेंज जो होती थी 10% से 10.25% का एफडी का रेट होता था, ठीक है। तो 2000 से लगातार ये रेट्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये आप ये लगाइए कि अगर मैं एवरेज लगाऊं 10.25 से एवरेज स्टार्ट हुई थी 99 2000 के, आज की जो है 5.2, ऑलमोस्ट ये रेट हाफ हो चुका है एफडी का। अगर मैं पिछले ये 22-23 साल की अगर एफडी का एवरेज रेट लूँ तो 7.7% हमारा एफडी का एवरेज रेट है। तो इसमें से आप टैक्सेशन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 20% ब्रैकेट में है, मुझे नो डाउट की वी आर ऑल इन 30% ब्रैकेट, एवरेज हम एट द मिनिमम लोअर साइज 20% भी लगाते हैं तो इसके ऊपर हमारा 1.5-2% हमारा ये वो कट जाएगा, टैक्स निकल जाएगा, तो 6% हमें मिलेगा। तो 6% अगर हमारे को रिटर्न आएगी और 6.25%, 6-6.5% हमारी इन्फ्लेशन चल रही है जो कि गवर्नमेंट की फिगर है, मैं आपकी फिगर की भी बात नहीं कर रहा, तो वो हमारे नेगेटिव रिटर्न है। गवर्नमेंट की फिगर साथ ही हमारा नेगेटिव रिटर्न है एफडीज के ऊपर। अगर मैं आपका इन्फ्लेशन 12% है, 15% है, तो बहुत ज्यादा बड़ी फिगर नेगेटिव में निकल आती है। तो दैट इज द वरीसम स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एफडी में करें, उसके साथ कहीं आपको डिवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ एफडी में डालेंगे या बिल्कुल ही फिक्स ऑप्शन में डालेंगे तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू गेट नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि एफडी के रेट्स और इन्फ्लेशन के रेट बराबर है। अभी एफडी में से टैक्स लेस होगा तो नेगेटिव रिटर्न है। और अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपसे शेयर करूँ कि अगर 100 रुपए की मैंने एफडी करवाई है अगले 10 साल के लिए, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफडी का मैंने ज्यूम रेट यहाँ पे 7.25% मैंने ले लिया है, ठीक है। जैसे लास्ट स्लाइड में 7.7% एवरेज था, तो ये 7.7% एवरेज था क्योंकि पीछे से रेट बहुत हैवी रेट्स थे। आगे तो रेट्स इतने हैवी नहीं रहने वाले। तो अगर हमने ये हम फ्यूचर अगले 10 साल की बात करें, अगले 10 साल के लिए मैंने एफडी कराई है 7.25% ज्यूम रेट लिया, इन्फ्लेशन मैंने ज्यूम किया 6.1% पे 17% पे। तो आज अगर मैंने 100 रुपए की एफडी करवाई है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होने वाली है 201 रुपए। और इन्फ्लेशन से जो इन्फ्लेशन है, जो 100 रुपए की आज चीज आ रही है वो 10 साल बाद आएगी 182 रुपीज। तो ये डिफरेंस बहुत कम रह जाता है कि 182 रुपीज का आपके जो 100 रुपए की आज जो आपको कोई फॉर एग्जाम्पल आप चीज 100 रुपए की आज खरीद रहे हैं, आज आप फॉर एग्जाम्पल एक पेन ले रहे हैं 100 रुपीज का, आफ्टर 10 ईयर्स वही पेन 182 रुपीज का आएगा। लेकिन आपका एफडी में जो 100 रुपीज है वो 201 रुपीज हो चुके होंगे। लेकिन क्या ये फाइनल फिगर है? अभी ये फाइनल नहीं है क्योंकि अभी एफडी का टैक्स भी इसमें हम डिडक्ट करेंगे। तो पोस्ट टैक्स अगर हम देखते हैं तो 181 जो 201 रुपए जो एफडी के बने थे वो पोस्ट टैक्स, यहाँ पे अगर मैंने टैक्स ब्रैकेट 30% व्यू किया है तो पोस्ट टैक्स जो उसका रेट रह जाता है वो 164 रुपीज रह जाता है। तो 164 रुपीज आपके हाथ में आते हैं एफडी के टैक्स कटने के बाद 10 साल के बाद। और वो जो पेन आपने आपका जो पसंदीदा पेन है, जो आपका फेवरेट पेन है, वो 181 रुपीज का होता है। तो यहाँ पे मोटा मोटा 17-18 रुपए का शॉर्टफॉल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ रखनी है, कहाँ पे पैसे मेरे को इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर मैं एफडी की अगर मैं बात करूं तो ये लेटेस्ट डेटा है मेरे पास। ये है Q4 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, 31 मार्च का ये डेटा है, फाइनेंशियल 31 मार्च 2023 का। इसमें देखिए कि 188 लाख करोड़ की एफडीआर है हिंदुस्तान में। ये बड़ी एक पूर स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्योंकि शुरू से हमारा एफडी में ही एक बिलीफ सिस्टम रहा है। हम एफडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन एफडी से हमें एक्सपोजर बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम्स हैज ऑलरेडी चेंज। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी फिगर है कि इंडियन पब्लिक की जो सेविंग है 188 लाख करोड़ एफडीज में है। तो इसमें ये देखिए कि यहाँ पे आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी एफडी है, इंडिया में 1.29 लाख की है, पंजाब में 5.48 लाख की है, हरियाणा में 6.82 लाख की है, गुजरात में देखिए 10.07 लाख की एफडीज हैं, 10.07 लाख करोड़ की एफडीज। तो दिल्ली में अकेले दिल्ली में ही 16.15 लाख करोड़ की है। तो इतना पैसा डिपॉजिट में पड़ा है, तो हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे हम इन्फ्लेशन को बीट करेंगे?
कैसे हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएंगे, कैसे हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे। तो ये वो पैसा है जिसको एक्सपोजर चाहिए, जिसको डिवर्सिफिकेशन चाहिए। तो ये थोड़ा 31 मार्च 22 का डेटा है। ये टोटल है कि टोटल हम इन्वेस्टमेंट जो हमारी इंडियन पब्लिक की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 170 लाख करोड़, ये 1 साल पुराना डेटा है। आज की डेट में तो 1.88 लाख करोड़ ये हो चुकी है इन्वेस्टमेंट। 1.7 लाख करोड़ जो बैंक डिपॉजिट्स में अभी पड़ा है, 170 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट में पड़ा है टोटल सेविंग का। उसमें से 52 लाख लाइफ इंश्योरेंस में पड़ा है, म्यूचुअल फंड में 38 लाख करोड़ पड़ा है, ठीक है, रिटायरमेंट स्कीम में इतना पड़ा है। तो देखिए कि 56% टोटल सेविंग का बैंक डिपॉजिट्स में पड़ा है, ठीक है। तो 56% पैसा जो है वो तो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर रहा, वो तो पोस्ट टैक्स नेगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक अटके हुए हैं, जहाँ पे हमारे पैसे को डिवर्सिफिकेशन चाहिए, जहाँ से हमें थोड़ा पैसे को निकालना पड़ेगा, एफडी में एक्सपोजर कम देना पड़ेगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी पड़ेंगी, जो कि अभी आज की डेट में मार्केट में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी सपोर्ट है, सेफ है। वो आने वाली स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा। तो आप ये देखिए कि अगर मैं एफडी पे एक और इसमें मेरे पास डेटा है कि कौन से एज ग्रुप के जो लोग हैं वो उनके पास एफडी कितनी एफडी पड़ी है। तो ये देखिए जो सबसे क्रूशियल जो एज ग्रुप है 40 to 60, जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ना होता है, एजुकेशन मैरिज के लिए अपना घर बनाना होता है, और जब रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना होता है, तो उस मतलब ये वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, उस एज ग्रुप का में 30 टोटल एफडी का जो 34% पैसा उसमें है। आप ये लिखिए कि वो 34% पैसा अपना एफडी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। यहाँ पे एक मुझे नहीं पता कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे कुछ होंगे जो मतलब इस को रिलेट करते होंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा पैसे को डिवर्सिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे एफडी में हमारा पैसा बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टक है। अगर मैं एफडी और म्यूचुअल फंड डेट फंड्स की कंपैरिजन करूं आज की डेट में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी डेट फंड्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम सेफ्टी के साथ एफडी की सेफ्टी के साथ अवेलेबल होते हैं। अगर मैं आज की डेट की बात करूं, क्योंकि इसकी टैक्सेशन भी चेंज हुई है 31 मार्च 2023 में, अभी बजट 2023 में इसकी के बाद इसकी टैक्सेशन चेंज हुई है। तो इसमें क्या, अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो सेम है टैक्सेशन दोनों की, मैक्सिमम मार्जिन रेट पे टैक्स होता है। जो भी आपकी टैक्स ब्रैकेट है एफडी का इंटरेस्ट उसी पे टैक्स होता है, और डेट म्यूचुअल फंड का जो आपको रिटर्न आती है, इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर भी सेम ही टैक्सेशन है। तो यहाँ पे सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर मैं कैपिटल लॉस की बात करूं तो एफडी में वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वेयर एज इन डेट म्यूचुअल फंड वी कैन सेट ऑफ कैपिटल लॉस इन इक्विटी स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड अगेंस्ट गेन मेड ऑन डेट फंड। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पुराना लॉस है स्टॉक्स का या इसका म्यूचुअल फंड्स का, वो लॉस हम जो डेट म्यूचुअल फंड का हमारा जो गेन आया है, जो प्रॉफिट है, उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं। वेयर एफडी में ये ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एफडी के इंटरेस्ट को आप किसी के साथ नहीं आप कर सकते, क्योंकि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज में फॉल करता है, और जो डेट की जो इनकम है वो कैपिटल गेन में फॉल करती है। तो कैपिटल गेन में हमेशा जो कैरी फॉरवर्ड हमारे लॉसेज होते हैं उसके लिए हमें एडजस्टमेंट मिलती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स डेफरमेंट, आप एफडी में क्रूड इंटरेस्ट के ऊपर हर साल टीडीएस पे करते हैं, वेदर यू आर यूजिंग दैट इंटरेस्ट और नॉट। आपने वो एफडी का इंटरेस्ट, आपने एफडी आपकी रिन्यू हुई है या नहीं हुई है, आपका इंटरेस्ट बैंक में आया या नहीं आया, आपने एफडी का इंटरेस्ट यूज किया नहीं किया, आपको टैक्स हर साल क्रूड बेस पे देना पड़ेगा। डेट म्यूचुअल फंड में वेयरएज की यू पे टैक्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ओनली। क्या फॉर एग्जाम्पल आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आफ्टर 7 ईयर तो उसमें से आप पैसा निकाल रहे हैं, तो जब आप निकालेंगे तो उस टाइम पे आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है, आपको एवरी ईयर टैक्स नहीं पे करना है। तो ये टैक्स डेफरमेंट की बहुत अच्छी एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है डेट म्यूचुअल फंड में। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो अगर हम जैसे कि हम जानते हैं, एज ए ऑडिटर भी जानते हैं कि एफडी की जो 5 लाख की जो हमारी जो सिक्योरिटी है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की किसी बैंक में 50 लाख की एफडी है, तो उनकी जो अगर गॉड फॉरबिड भगवान ना करे वो बैंक डूब जाता है, तो 5 लाख का ही आपकी जो है आपकी इंश्योरेंस है, उसमें आपको 5 लाख रुपया वापस करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो आपकी एफडी आपने कराई, चाहे आपने नेशनल बैंक में कराई है, प्राइवेट बैंक में कराई है, कोऑपरेटिव बैंक में कराई है, स्मॉल बैंक में कराई है, किसी भी बैंक में करवाई है, तो आपका सिर्फ 5 लाख की उसमें सेफ्टी है। तो अगर गॉड फॉरबिड बैंक को कुछ प्रॉब्लम होती है, बैंक डूब जाता है,
तो आपको 5 लाख की ही सेफ्टी है, तो टोटल पैसा आपका सेफ नहीं होता है। तो ये जो DICGC का जो इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी है वो 5 लाख की है। ऐसे ही अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट में भी अलग अलग फंड्स आते हैं जो कि काफी सेफ होते हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC आते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आते हैं, ट्रिपल सिक्योरिटीज आती हैं जो कि क्रिसल वगैरह से सिक्योरिटी एजेंसी से काफी उसमें रेटिंग इन्वॉल्व होती है और काफी सेफ होते हैं एज कंपेरिजन टू FD। तो FD में से अगर आप कुछ एक्सपोजर म्यूचुअल फंड में लेना चाहते हैं तो डेट फंड में आ सकते हैं, तो उसमें भी आपके पास सेफ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, अगर आप FD में से पैसा पहले निकालते हैं तो आपको प्री मेच्योर विड्रॉल का, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल की FD करवाई है और आपने 6 मंथ बाद FD को आप अपना सरेंडर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि आपको 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी 6 मंथ्स की स्लैब का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और आपको कुछ ना कुछ प्री पेमेंट पेनल्टी भी देनी पड़ेगी जो आपकी नेट इंटरेस्ट आउटपुट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं, डेट म्यूचुअल फंड कैन आल्सो बी रिडीम्ड एट एनी टाइम लाइक FD। तो इसको एग्जिस्टिंग NAV जो इसकी नेट एसेट वैल्यू है, जिसको हम इसकी प्राइस कहते हैं, उसके ऊपर हम कर सकते हैं, जो कि फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल है। और इसमें डेट म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है 7 days to 3 months 6 months के बीच में कुछ एग्जिट लोड होते हैं, अलग डिपेंडिंग ऑन द स्कीम्स। तो उसमें शुरू में एग्जिट लोड होता है इनिशियल पीरियड में, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। लाइक FD में आपको प्रीमेच्योर पेनल्टी देनी पड़ती है या शॉर्ट पीरियड का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें डेट में क्या है कि अगर एग्जिट लोड है आपका इनिशियल पीरियड में 3-6 महीने तक, उसके बाद आपका कोई एग्जिट लोड नहीं है। आपका जो भी मार्केट वैल्यू है जो लैंड उसकी चलती है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्रीली आपके पास मनी अवेलेबल है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, रिटर्न्स की बात करूं, तो आपको पता है कि ये 6.5% की FD है, ये 5.5 की, ये 8% की है। अगर मैं डेट की बात करूं तो यील्ड टू मैच्योरिटी इज पब्लिकली अवेलेबल। तो यहाँ पे हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं कि मैंने कितने पैसे लगाए थे, आज मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आया है, उसको यील्ड टू मैच्योरिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने साल में कितना आया। तो वो आपको पब्लिकली वो सारी फिगर अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम पे YTM अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं रिडम्पशन लेने से पहले कि मेरे को इसमें कितने टका रिटर्न बना है। तो जैसे यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया कितने टका रिटर्न बना है, वैसे ही FD में आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को 10 लाख की FD थी, अभी मेरे को इतना मिल रहा है, तो कितना मेरे को रिटर्न आया। टैक्सेशन दोनों की सेम है। तो अगर आप FD में से एक्सपोजर लेना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि सिक्योर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब मैं अगर गोल्ड की बात करूं, ये गोल्ड के हिस्टोरिकल रेट्स हैं, प्राइसेस है कि 1979 में 937 का आपका प्राइस था गोल्ड का। और अभी ये जैसे इसका रेट बढ़ता गया, तो 95 में 4680, 2007 में 10,800, तो उसके बाद एकदम से जंप आया। तो 2023 में ये अपना ये 28 जून का ये मैंने डेटा लिया है, 6,150 जो रेट है गोल्ड का रेट है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, 60,000 के आसपास चल रहा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अगर मैं इसकी एवरेज रिटर्न लूँ, तो इन्वेस्टमेंट आपने करवा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए 1979 में लगाया, तो आज उसकी वैल्यू है 65,80,000 मोटा मोटा। तो 65.80 टाइम्स मेरा पैसा हुआ है। 1 लाख का मेरा मोटा मोटा 66 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली बन गया। तो 65-66 टाइम्स मेरा पैसा हुआ है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, यू कैन कंसीडर वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज है। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं कि 1979 जब सेंसेक्स का जन्म हुआ, तो ये 1 लाख रुपया अगर मैंने उस टाइम लगाया होता, जब 31/3/1979 इज द बर्थ डेट ऑफ द BSE सेंसेक्स। तो उस टाइम 100 रुपए पे जब सेंसेक्स को डेजिग्नेट किया गया, 100 रुपए से स्टार्ट किया गया, तो उसमें अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया होता, तो आज 31 मार्च 2023 का मैंने ये डेटा लिया है, आज तो अभी यस्टरडे 66,000 क्रॉस कर चुका है सेंसेक्स। अगर मैं 31 मार्च का डेटा लूँ, तो जो 31 मार्च पे जिस डेट सेंसेक्स जिस लेवल पे क्लोज हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू 6,39,15,430 है। तो ये आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स ने 15.72% की CAGR डिलीवर की है इन द लास्ट 44 ईयर्स। और पैसा आपका 639 गुना बना है। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता गोल्ड में, तो गोल्ड में 66 लाख बना है। ठीक है, तो अगर मैंने सेंसेक्स में लगाया था, इक्विटी में लगाया होता, फॉर एग्जाम्पल की जो भी ब्लू चिप कंपनीज हैं, या किसी म्यूचुअल फंड में बेटर प्लान वे से आपने डाला होता, तो आपका जो पैसा है तो वो कितना आपका ग्रो किया है, 6,39 लाख उसका बना है।
अगेंस्ट 66 लाख इन गोल्ड। तो ये रियल डाटा, ये हिस्टोरिकल डाटा है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये पावर है इक्विटी की, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। तो इंडिया में ग्रोथ है, इंडिया की जो कंपनीज है वो ग्रो कर रही हैं, इंडिया में रिक्वायरमेंट है हर चीज की, इंडिया में डिमांड है, कंजम्पशन है, इंफ्रा की डिमांड है, हर चीज की डिमांड है। तो जो पार्टिसिपेट इन सेंसेक्स, जो पार्टिसिपेट इन इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी आपको जंप देता है। तो आप ये देखिए कि कितना पोटेंशियल है, इक्विटी हैज अ ग्रेट पावर टू क्रिएट वेल्थ। तो ये 639 गुना इसमें पैसा होगा, अगर लाख रुपए का 6 करोड़ 39 लाख रुपए। अब अगर मैं ये देखूं कि हम कहते हैं कि मार्केट में रिस्क है, वोलेटिलिटी इज नॉट रिस्क, ये जो आप देख रहे हैं कि ये वोलेटिलिटी इज नॉट रिस्क, ठीक है। द रिस्क इज दैट ये मेरा सेविंग है, ये मेरी रिटर्न आ रही है सेविंग पे, ठीक है। ये मैंने डॉलर लगाया है, ये मेरा टाइम का एक्स एक्सिस टाइम चल रहा है, वाई एक्सिस में मेरा पैसा है, ये मार्केट आपकी वोलेटाइल चल रही है। तो आप ये देख रहे हैं रिस्क कहाँ पे है। तो सेविंग में जो रिटर्न मुझे आ रही है, और मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन की, मेरे को यहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7-8% आ रही है, और मेरी जो इन्फ्लेशन पर्सन इन्फ्लेशन है, छोड़ दीजिए सीपीआई को जो गवर्नमेंट फिगर दे रही है, आप ये देखिए कि मेरे खर्चे कितने साल में डबल हो रहे हैं। तो ये जो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो इन्फ्लेशन है, ये रिस्क है, एक्चुअल रिस्क ये है, ये रिस्क नहीं है। क्योंकि मार्केट तो देखिए ऊपर नीचे रहेगी, वोल्टाइल रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखिए कि ये 100 का सेंसेक्स 64,000 आज की डेट में 66,000 पे पहुंचा है। तो ये कैसे पहुंचा है? ये ऐसे ही पहुंचा है, वोल्टाइल इसलिए पहुंचा है। तो रिस्क ये नहीं है, रिस्क आपका पर्सन इन्फ्लेशन माइनस योर रिटर्न यू आर गेटिंग इज द रिस्क। तो ये आप जरूर इसमें इसको ध्यान में रखिए। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है, कि आप मार्केट ऊपर नीचे चलता है, मार्केट वोलेटाइल है, तो आप इसको कैसे करेंगे कि तीन चीजें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि व्हेन शैल मार्केट करेक्ट, व्हेन हाउ मच विल मार्केट करेक्ट, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट में कब करेक्शन आएगी, मार्केट कब गिरेगी, ठीक है, और मार्केट कितने गिरेगी, और मार्केट कितनी देर बाद रिकवर करेगी। तो ये कोई भी गेस नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलती है, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, अजम्पशंस भी चलती हैं, और र्यूमर्स भी चलते हैं मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी की ग्रोथ भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, आरबीआई की पॉलिसीज भी, एवरीथिंग। तो मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, आप उसकी प्रोडिक्शन नहीं कर सकती कि मार्केट कब करेक्ट होगी, कितनी होगी, और कितनी देर बाद वो यू टर्न लेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, जो हर्षद मेहता का टाइम था 1992 में, सेंसेक्स जब वो स्कैम हुआ, हर्षद मेहता वाला जब स्कैम ओपन हुआ, तो सेंसेक्स जो था कि अगर वो प्लंज हुआ 54% से, 100 रुपए की वैल्यू 46 रुपए रह गई है, तो वापिस अगले 1.5 साल में रिकवर कर गया। 46 के ऊपर 127% टर्न लगा, तो वो ऑलमोस्ट फिर 100 रुपीज हो गए। तो ये जो वोलेटिलिटी है, ये टेम्परेरी है, ये करेक्शन जो होती है वो टेम्परेरी होती है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी, वी आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में काफी ग्रोथ है, इंडियन इकोनॉमी काफी बुलिश है, वो जंप बैक करती ही करती है, बिकॉज नाउ एट प्रेजेंट द फैक्ट इज दैट our population is blessing in disguise। आज की डेट में जो 143 करोड़ की हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, उसको हर चीज के लिए, एजुकेशन के लिए उनको सिस्टम चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ की चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर तरह चाहिए। तो इतना प्रोडक्शन है, इतनी डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए कंपनीज काम कर रही हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी है, तो सेंसेक्स कवर करता ही करता है। तो वोलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। वोलेटिलिटी एक टेम्पररी होती है, 6 महीने साल की होती है, सेंसेक्स बाद में दोबारा बाउंस बैक करता ही करता है। आपको मैं हिस्टोरिकल डेटा शेयर कर रहा हूँ, आपने 1992 का देखा, 96 में देखिए सेंसेक्स लाइन 40% इन 4 ईयर्स, और एक साल में वो 115% रिकवर कर गया। 2000 में जब टेक बबल हुआ, 1.5 साल में कितना गिरा, 2.5 साल में फिर दोबारा रिकवर कर गया। लेमन क्राइसिस 2008 में बहुत जबरदस्त क्राइसिस, पूरा बिल्कुल उसका ब्लैकआउट था, डार्क था, कि पैसा खत्म हो गया, गिर गया, मार्केट खत्म हो गई। तो वो टाइम भी हमने देखा है। तो उसमें क्या कि 61% को डाउन गया था हमारा, 100 रुपीज की वैल्यू 39 रुपीज रह गई थी। अब बिलीव कीजिए कि आपने 100 रुपीज लगाए हैं और उसकी वैल्यू 39 रह जाए, तो आप कितना एकदम से कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने उस टाइम पेशेंस रखी, जिनके पास एक फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज थी, तो उन्होंने लॉस बुक नहीं किया, और आने वाले 1.5 साल में वो पैसा उनका दोबारा रिकवर हो गया। अगर मैं 2010 की बात करूं, एक साल में 28% गिरा, 3 साल में 93% रिकवर हो गया। कई बार साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। 2020 में 30% गिरा, 2020 में 30% गिरा। उसके बाद आप ये देखिए कि कितना ये आप कोविड का ये टाइम है,
तो अगर मैं करूं कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो मार्केट था 42,000 समथिंग। तो उस टाइम जो 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद मार्केट गिर के आ गया 26,000 पे, तो 42 से 46,000 पे आ गया। तो लेकिन वो 3 महीने में ही 4 महीने में ही वो रिकवर कर गया था और दोबारा अपने लेवल को अचीव कर गया था। अब ये देखिए कि वो 26 वाला, अगर हम उस 26 को रिवर्स कर दे 62, तो 62 को भी क्रॉस कर दे तो फिर दोबारा 56 पे वो क्रॉस कर सकता है। नेवर बुक योर लॉसेस इन पैनिक, नेवर लीव द मार्केट, रादर बी इन द मार्केट फॉर अ टाइम, स्टे विद द मार्केट। तो अगर मैं अब ये आपने जब सारा हिस्टोरिकल डेटा देखा, अगर मैं बात करूं, इफ यू गेट अ चांस टू ट्रेवल बैक टू दोस करेक्शन विल यू गो एंड इन्वेस्ट, द आंसर इज डेफिनेटली यस। मतलब आप इनफैक्ट निकलने की बजाय आप और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप निकलने की जाए और पैसा बचेगा, क्योंकि अगर कोई चीज जब सस्ती हो रही है तब आप खरीदेंगे कि जब महंगी हो रही है तब खरीदेंगे? जब सस्ती हो रही है तब खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने कोई चीज खरीदी थी, जहाँ पे आपने कोई चीज खरीदी थी वो आपकी 30 पर 100 रुपए का आपका 70 पे रह गया, या 100 रुपए का ये आपका, अगर मैं ये करेक्शन लूँ 100 रुपीज का 39 रह गया। तो इसमें दो तरह के लोग होंगे, जो 39 रुपीज 61 रुपीज का लॉस बुक कर लेंगे पैनिक में जाके, और वो जैसे कि मार्केट्स में कभी पैसा नहीं बनता, ये तो जुआ है, ये वो, ऐसा जो भी है। तो इसमें क्या है कि 61% का इसमें फॉल, 39% 61 रुपीज का लॉस बुक किया। अगर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा, गाइडेड होगा, जिनके पास प्रोफेशनल एडवाइस अवेलेबल होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, वो इस टाइम पैसा और इन्वेस्ट करेगा ताकि अपनी प्राइसेस को एवरेज आउट करे। कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे पहले मैंने 1 यूनिट खरीदा था, अब मैं 4 यूनिट और खरीद लेता हूँ 39 रुपीज के, तो मेरी एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, और फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज आ गई। तो 39 रुपीज 60 बहुत जल्दी बन जाएंगी रादर की 100। तो वो पहले ही ब्रेक इवन कर जाएगा, और जब वो 60 से क्रॉस करना शुरू करेगा तो उस टाइम पे उसको प्रॉफिट बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ यू गेट अ चांस टू ट्रैवल बैक टू दोस करेक्शन विल यू गो एंड इन्वेस्ट। कहाँ तो रिडम्पशन की थ्योरी चल रही थी, पैनिक चल रहा था, पैसा निकालने की बात चल रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि और इन्वेस्टमेंट करेंगे। डेफिनेटली इसका आंसर यस में ही निकलता है, क्योंकि आपने ये पीछे सारा डेटा देखा। तो यहाँ पे बस एक चीज याद रखिए कि मार्केट के बारे में मैं यहाँ पे ये एडवाइस दूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि अगर आपको मार्केट के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये जो आपको सामने दिख रहा है, करेक्शन इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट, बिकॉज वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में काफी ग्रोथ है, काफी डिमांड है, और काफी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन भी ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ आपको आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, ये पंच लाइन आप आज के वेबिनार से जरूर आप लेके जाइए, जो मैं हमेशा बहुत विद अंडरलाइन रिकमेंड करता हूँ कि करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। अब सक्सेसफुल इक्विटी इन्वेस्टिंग के ऊपर आते हैं कि इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ठीक है, एंड स्टे डिसिप्लिन्ड विद सिप एसआईपी एंड इन्वेस्ट विद गोल्स। तो अब जैसे आपने यहाँ पे अगर बात करें कि इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इक्विटी में रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने स्टोरी सुनी है कि विप्रो में इतने पैसे लाख रुपए लगाया था, इतना बन गया, क्या कोई म्यूचुअल फंड इतने रिटर्न दे सकता है? तो डेफिनेटली मेरा आंसर होगा नो, कोई म्यूचुअल फंड इतनी रिटर्न नहीं दे सकता। क्या, लेकिन क्या हमें पता है कि कौन सी कंपनी विप्रो निकलेगी आगे जाके, क्या उसमें मेरा पैसा इतना ग्रो करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं एक या दो या तीन या चार कंपनी पे पैसा लगा रहा हूँ, क्या मेरा पैसा इतना वहां पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा? हो सकता है कि उसमें पैसा मेरा डूब जाए। तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में बहुत ही मिनिमम पेनी चार्जेस के ऊपर आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो फंड मैनेजर्स हैं, जो आपका ये फंड्स मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड में, हाईली क्वालिफाइड पीपल, उनके पास साथ रिसर्च और एनालिसिस की टीम है, उनके पास डेटा है, टूल है, उनके पास पूरी टीम होती है आपका डेटा को आपके जो पैसे को मैनेज के लिए। इक्विटी की टीम अलग है, डेट की टीम अलग है, उनकी रिसर्च होती है, वो कंपनी से जाके मिलते हैं, उनके प्लांट्स विजिट करते हैं फंड मैनेजर, तो सारी उनकी रिसर्च के बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और किस टाइम पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से फंड सिलेक्शन करने, कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने, वो सब उनको पता है। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप अगर आपने 5 लाख रुपए लगाया, तो आप अगर जब शेयर खरीदने जाएंगे तो आप मैक्सिमम क्या करेंगे कि 50 शेयर के 10 शेयर खरीद लेंगे, इससे ज्यादा डिवर्सिफाई नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड में 5 लाख लगाया है तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, आपके अलग अलग स्टॉक खरीदेगा, और नो डाउट की जो उनकी
जो नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके पास फैसिलिटी, जो टूल्स और जो रिसर्च अवेलेबल है, वो मच मोर देन अस है, क्योंकि हम अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी में बिजी हैं। उनकी कोर एक्टिविटी वो है फॉर व्हाट दे आर पेड फॉर। तो वो मच बेटर हमारा पैसा वो मैनेज करते हैं, और हमारे रिस्क को भी वो काफी उसको कंट्रोल करते हैं, उस पैसे के रिस्क को भी कंट्रोल करते हैं। और ये एक चार गोल्डन प्रिंसिपल्स है: इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्टे डिसिप्लिन्ड विद एसआईपी, इन्वेस्ट विद गोल्स। ये मैं एक वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करूंगा। बाय इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल आपको उन इन्वेस्टर्स की, उन जो फंड मैनेजर्स हैं, उन जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपको उनकी फंड मैनेजमेंट चाहिए, उनकी कंसल्टेंसी चाहिए, तो अगर आप 5 लाख या 10 लाख भी लगाने जाएंगे ना, तो उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि उनकी फीस ही 3-4 करोड़ रुपए होगी, जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि 10 लाख लगाने के लिए इतनी ज्यादा उनकी फीस होगी। जो लोग हैवली पेड हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आप काम कर रहे हैं, आई एम सेइंग नेम फॉर द sake of taking only, like SBI, ICICI, टाटा, बिरला, कोटक, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके पास बहुत हैवली पेड फंड मैनेजर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो 5 साल से लेके 40-40 साल का एक्सपीरियंस होता है फंड को मैनेज करने का। तो वो जो फंड मैनेजमेंट है, आपको म्यूचुअल फंड में एट पैनी वैल्यू पे आपको वो मिल जाती है, जो कि आप डायरेक्ट अगर उनसे अपनी फंड्स को मैनेज करवाना चाहे, तो ना वो आप उनको हायर कर सकते हैं, ना आप उनको पे कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये ब्यूटी है कि म्यूचुअल फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। तो उसमें क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, वो डिवर्सिफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, उसको उतना खर्चा पड़ता है। जो 5 करोड़ पे इन्वेस्ट करता है, उसको उतना खर्चा पड़ता है। जो 5 हजार इन्वेस्ट करता है, उसको उतना खर्चा पड़ता है। तो वहां पे क्या है कि आपका जो खर्चा डिवर्सिफाइड हो जाता है, और वहां पे आपको फंड मैनेजमेंट, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिल जाती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड वेरी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, लोअर एक्सपेंस है, वहां पे एक्सपेंस बहुत कम है। एंट्री लोग तो खत्म ही हो गए थे 2009-10 में, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छी आती है। ठीक है, लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड में पूरी, आपका कोई लॉक इन पीरियड में पैसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा, आप अगर आप फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के हिसाब से अपना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करते हैं, और आपको कब कौन सा कितना पैसा चाहिए, वो पैसा अगर आप फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो जब जब आपका गोल अराइव होगा, तब तब आपको पैसा अवेलेबल है, क्योंकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। टोटली ट्रांसपेरेंट, आई कैन से कि आज की डेट में म्यूचुअल फंड से ट्रांसपेरेंट कोई चीज नहीं। इट्स लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ऑफ अ पर्सन। इतने ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट हैं, आपको एक फैक्ट शीट में सब कुछ पता होता है, आपकी फैक्ट शीट में कि मेरा इस टाइम कितना खर्चा इस प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहा है, इक्विटी में कितना पैसा गया है, डेट में कितना पैसा है, कैश में कितना पैसा पड़ा है, इक्विटी में स्टॉक्स कौन से होल्ड है, डेट में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितनी है, एसडीएल कितनी है, ट्रिपल ए कितनी है, डबल ए कितनी है, सिंगल ए कितनी है, पूरी इसमें ट्रांसपेरेंसी है एट द क्लिक ऑफ माउस, एट द ऑन योर ऐप ऑन। तो पूरा ट्रांसपेरेंट ये प्रोडक्ट है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग है, विड्रॉइंग ऑप्शन आपको टोटल फ्लेक्सिबल है। इसमें फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग है, विड्रॉ आप जब मर्जी इसमें कर सकते हैं। आप जैसे कोई भी, आप फॉर एग्जाम्पल इसमें आप बहुत सारे लोग आप में से डेफिनेटली एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मर्जी आप ऐसे में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, एसआईपी के अमाउंट को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, विड्रॉइंग ऑप्शन टोटल है। अब अपने फाइनेंशियल गोल पे रहे, आप इसको विड्रॉ कीजिए, या गॉड फॉरवर्ड कोई इमरजेंसी कंटीजेंसी आ गई तो उससे पहले भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल इसमें विड्रॉल है, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं। और कन्वीनियंट है, हैसल फ्री है। आज की डेट में आप बड़े आराम से इसको ऐप पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विस लेके इसको बीएससी स्टार में पोर्टल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपको पूरी सर्विस देते हैं। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, वेरी इजी एट योर होम, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड का ऑपरेशन है कि आप इन्वेस्टर्स है, पूल मनी करते हैं, फंड मैनेजर है, उसको इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी में रिटर्न आती हैं, रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल गोल, वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की जर्नी की बात करूं, तो म्यूचुअल फंड बहुत पुराना है। यहाँ पे ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है। म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ था 1963 में। ठीक है, तो सेंसेक्स से भी पुराना है। ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड इंडिया स्टार्टिंग 1963 विद फॉर्मेशन ऑफ यूटीआई इन 1963 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड फंक्शनड अंडर द रेगुलेटरी एंड कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ये इसका फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज 1987 से 1993 जब पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड आए, जब एसबीआई म्यूचुअल फंड वगैरह जब
ये इंट्रोड्यूस हुआ सब कुछ, ये सेकंड फेज म्यूचुअल फंड का है। थर्ड एक अग्रेसिव फेज है जब प्राइवेट सेक्टर को इसमें परमिशन मिली, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टाटा, ये जो जब प्राइवेट सेक्टर इसमें म्यूचुअल फंड आया, इसमें जब ये सारे म्यूचुअल फंड आए तो इस टाइम इसको एक लोगों को समझ आना शुरू हुआ। 2003 में पता लगा कि यार म्यूचुअल फंड भी कोई चीज है। पर इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इज वे बैक 1963 ईयर से स्टार्ट है, लेकिन इसको कोई इतना एक्सपोजर नहीं था, इसका इतनी मार्केटिंग नहीं थी, लोगों को पता नहीं था के ऊपर इतना कोई काम नहीं हो रहा था। तो म्यूचुअल फंड बहुत पुराना प्रोडक्ट है, फॉर योर गुड नॉलेज। और आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड का जो एजीएम है वो 42 ट्रिलियन है, आज तो 43 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया। 43 ट्रिलियन 43 लाख करोड़। तो ये देखिए कि ये इसकी ग्रोथ है, 43 लाख करोड़ का जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री हो चुकी है। और जो एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, उसका विजन है अगले 5 से 7 साल में 100 ट्रिलियन का, जो कि बहुत इजीली अचीवेबल लग रहा है बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। क्योंकि आज की डेट में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो रही है, क्योंकि तो लोगों को समझ आ रहा है कि वी हैव टू डिवर्सिफाइड आवर इन्वेस्टमेंट एंड वी डोंट वांट टू मिस दिस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है उसके हिसाब से वो उसको मिस नहीं करना चाहते। और सभी म्यूचुअल फंड कंपनी सेबी के पास रजिस्टर्ड होती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा इसके ऊपर कंट्रोल है। और अगर मैं एडवांटेजेस एज ए ऑलरेडी सेट की, म्यूचुअल फंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड्स भी आते हैं, डेट फंड्स भी आते हैं, गोल्ड फंड्स भी आते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट होती है, अदर भी और इंटरनेशनल आते हैं। लिक्विडिटी है, नो लॉक इन पीरियड इसमें है, सिर्फ एक टैक्स सेवर जो ईएलएसएस होता है उसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, 99% म्यूचुअल फंड इज विदाउट एनी लॉक इन पीरियड, यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम। तो मैं तो यही हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड इज लाइक माई बिल। इनफैक्ट हम म्यूचुअल फंड नहीं, मैं तो म्यूचुअल फ्रेंड बोलता हूँ। इट्स लाइक अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपके सपनों को, आपके गोल्स को पूरा करता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रियल रिटर्न है, एवरीथिंग। तो इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इजी टू बाय एंड सेल है, एवरी स्कीम फॉर एवरी फाइनेंशियल गोल है। आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है 0 to 5 ईयर्स का, मीडियम टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, सभी के लिए अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपका एडवाइजर, आपका कंसल्टेंट, आपका प्रोफेशनल आपको गाइड कर सकता है। और इसमें ये सेफ्टी है, ट्रांसपेरेंसी, एज आई ऑलरेडी सेड, बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लोअर टैक्स ऑन कैपिटल गेन है, जैसे इसमें अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, जो 1 साल से अंदर का जो हम विड्रॉल करते हैं और 1 साल से बाद विड्रॉल करते हैं तो एक विद 1 लाख एग्जम्पशन एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख है, 1 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा तो 4 लाख वो अकाउंट होगा, 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स है। तो 4 लाख के ऊपर टैक्स किया आपने 40,000, तो 40,000 आपने टैक्स पे किया, आपका जो गेन था लॉन्ग टर्म वो तो 5 लाख, तो टैक्स भी रिड्यूस होकर अगेन 8% कम्स टू 8%। तो अगर मैं डेट की बात करूँ तो इसमें जो शॉर्ट टर्म का डेट है विद इन 3 ईयर्स, उसके ऊपर तो आपका एमएमआर है, जो भी आपकी टैक्स स्लैब है ऊपर, अगर उसके ऊपर हम जाते हैं, लॉन्ग टर्म में हम जाते हैं तो डेट में भी 2 तरह के हैं। उसमें एक एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर बिलो 35% एंड एक्सपोजर बिटवीन 35 to 65%। एक ये नया स्लैब आई है। तो जो 35% से नीचे जो आपके हैं जो डेट फंड्स हैं, उनकी टैक्सेशन तो 10, 20, 30% जो भी आपकी एमएमआर है उसके ऊपर ही रहती है। जो 35 to 60% है उनमें अप टू 3 ईयर्स जो टैक्सेशन है वो एमएमआर है, और आफ्टर 3 ईयर्स जो टैक्सेशन है दैट इज 20% विद इन टैक्सेशन है। तो ये डेट की टैक्सेशन है। इक्विटी की शॉर्ट टर्म 15% है और लॉन्ग टर्म आफ्टर डिडक्टिंग 1 लाख 10% टैक्सेशन है। तो काफी टैक्सेशन कम है इक्विटी की अगर बात करें, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी डेट में इसमें मिलता है। पेंशन फंड मैनेजर आई ऑलरेडी डिस्कस। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रियल रिटर्न है, तो रियल रिटर्न जैसे मैंने बात करी आपसे, थ्री पार्टी रियल रिटर्न, रिटर्न विच यू आर गेटिंग माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर आपको किसी चीज में अगर 8% आपको रिटर्न आई, उसमें से अगर आपका 20% टैक्स चले गया तो 6.4 आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है। उसमें से अगर आपने इन्फ्लेशन निकाल दी 6.5%, तो आपको -1% रिटर्न है। आफ्टर अर्निंग 8%, इवन आफ्टर अर्निंग 8%, यू आर गेटिंग -0.1% रिटर्न। तो 0.10%, 0.1% रिटर्न जो आपका है वो माइनस में है। तो रियल रिटर्न को ये बीट करता है, बड़े आराम से बीट करता है इन लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो मैं जो अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ तो शॉर्ट टर्म मैं मानता हूँ अप टू 3 ईयर्स। मीडियम आपको 3 साल का जो अगर आपका गोल है तो आपका शॉर्ट टर्म आप मान के चलिए, मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर्स और लॉन्ग टर्म आप 5 ईयर्स एंड अबव। तो अगर तो आपको 3 साल के लिए पैसा है तो गो फॉर डेट फंड्स, डोंट गो फॉर इक्विटी।
अगर 3 to 5 years के आपको का गोल है तो गो फॉर मिक्सचर ऑफ बोथ, कुछ हाइब्रिड फंड बैलेंस फंड्स के साथ और कुछ डेट फंड्स आप रख सकते हैं। और अगर आप 5 years के ऊपर आपका गोल है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लिक्विडिटी, तो रिमेन स्टक टू योर गोल्स, डोंट विथड्रॉ योर मनी बिफोर योर गोल हैज अराइव्ड, तो उससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और बहुत बड़ी चीज की म्यूचुअल फंड में एवरीथिंग इज केवाईसी कंप्लायंट, तो जैसे हम देखते हैं कि एफडी में फॉर एग्जांपल कहीं पैन नंबर नहीं दिया तो आपको ऑलमोस्ट सभी में पैन चले गया, तो कहीं नॉमिनेशन नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड ने अभी एमपी ने पीछे सभी नॉमिनेशन को द्वारा कंफर्म किया है, तो वो जिनके नॉमिनेशन नहीं थे उनका नॉमिनेशन हुआ है, जिनका था उनका रिकन्फर्म किया गया है, इन्वेस्टर्स को ओटीपी गए हैं। तो अभी क्या है कि अगर मैं एक अमेजिंग डेटा अगर आपसे शेयर करूं कि ड्यू टू नॉन नॉमिनेशन 1 लाख करोड़ इज केप्ट इन अबेयंस विद बैंक्स, एलआईसी एंड म्यूचुअल फंड। इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आज की डेट में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा स्टक्ड है, केप्ट इन अबेयंस है। उसका कोई वो विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, उसका कोई मतलब आपको वो पैसा हम आप अपने यूज के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नॉमिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिसीज है, किसी की डेथ होगी, आगे नॉमिनेशन नहीं है, आगे तो लीगल ईयर के एक क्लेम्स है, तो आपको लीगल ईयर का सर्टिफिकेट लाना है, तो आपको सारा वो प्रूव करना पड़ता है, तब जाके वो पैसा रिलीज होता है, तो उसमें नॉमिनेशन नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में तो अब आज की डेट में विदाउट नॉमिनेशन यू कांट स्टार्ट योर इन्वेस्ट, तो इट्स हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट। अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि नॉर्मली ये जो लिस्टेड स्टॉक, अगर टोटल लिस्टेड स्टॉक अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 9,000 के करीब, इसमें से 56% स्टॉक आज की डेट में डी लिस्टेड और सस्पेंडेड हो चुके हैं। अगर मैं डी लिस्टेड करूं तो 43% स्टॉक तो इसमें से जो लिस्टेड स्टॉक है 9,000 में से वो 4,000 स्टॉक तो डी लिस्ट हो चुके हैं, 1218 सस्पेंड कर चुकी है गवर्नमेंट। जो एक्टिव स्टॉक है वो 4,000 के करीब है। तो जैसे मैंने बात की थी कि म्यूचुअल फंड में लगाएं या इक्विटी में लगाएं, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे हमने विप्रो की एग्जांपल ली, ठीक है, कि विप्रो में अगर इतना पैसा लगाया तो इतना बन चुका होता, तो हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन आपके पास हिस्ट्री अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में आप अगर इक्विटी में पैसा लगाएंगे, अगर आप 2 4 5 10 कंपनी चूज करते हैं, तो वो कौन सी कंपनीज है जो ग्रो करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, वो मेरी नॉलेज नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी इन माई फोर बिजनेस फोर प्रोफेशन। तो ये रिस्क है कि डायरेक्ट इक्विटी इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो 9,000 में से 5,000 तो स्टॉक खत्म हो चुके हैं लिस्टेड स्टॉक, और 4,000 है आज की डेट में जो डायरेक्ट इक्विटी में आप जो ट्रेड करते हैं या कुछ भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं। अगर जो मैं BSE 30 की बात करूं कि ये जो डेटा है ये 1986 का 1986 का डेटा कंपाइल है, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हेन द सेंसेक्स वाज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 1986। तो अगर BSE 30 की अगर मैं बात करूं, जब BSE 30 बना था तो ये 30 कंपनीज थी, बेस्ट टू बेस्ट कंपनी थी उस टाइम के, ये बिग शॉट से जिसको हम ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप फंड कंपनीज कहते हैं। तो उसमें से भी 8 कंपनीज आज जिंदा है, मतलब कि 8 कंपनीज हैं, बाकी 22 कंपनीज इसमें से निकल चुकी हैं। तो जो टॉप की कंपनीज मानी जाती थी, तो इसमें आप कैसे एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो आज की बेस्ट 30 कंपनीज है, ये आगने वाले 10-20 साल में भी बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि ये नंबर हमेशा बदलता रहता है। तो ये जो 30 कंपनी थी उसमें सिर्फ 8 कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती हैं उस BSE 30 में, 22 कंपनी उसमें से निकल चुकी हैं। देखो ग्लैक्सो स्मिथ कितनी बड़ी कंपनी है, और सीएट की अगर हम बात करें तो बॉम्बे डाइंग का कितना नाम था, तो ये सारी कंपनी उसमें निकल चुकी है। तो ये रिस्क है कि इक्विटी डायरेक्ट इक्विटीज कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी क्या है कि उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC, L&T, M&M, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर, टाटा स्टील, ये कंपनीज उसमें B30 में आज की डेट में है। तो ये ये कंपनीज देख के हम जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी में, हम सेफर साइड पे जाएंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ हो पाए। तो अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन क्या इनमें पैसा सेफ रह पाएगा? बहुत मुश्किल है कहना कि सेफ रह पाएगा, कि इसमें कितनी रिटर्न आएगी, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं जो ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए, फंड मैनेजमेंट का सहारा लीजिए, फंड मैनेजर की सब्सिडी कीजिए, क्योंकि उनकी तो हमेशा 24/7, कहने का मतलब कि पूरी उनकी उसकी नजर रहती है, वर्किंग रहती है, और वो आपके लिए उस हिसाब से स्टॉक्स प्लस माइनस करते रहते हैं आपके बिहाफ पे। तो म्यूचुअल फंड बेटर एंड सेफर है। कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस अगर हम इक्विटी फंड्स की देखें तो जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, ये कैटेगरीज है। फ्लेक्सी कैप फंड
टोटल नंबर ऑफ 16 फंड्स अवेलेबल है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है जिसको हम टैक्सेबल कहते हैं, ELSS कहते हैं, इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो 25 स्कीम्स अवेलेबल है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की। फोकस 13 है, लार्ज एंड मिड कैप 19 है, लार्ज कैप 26 डिफरेंट स्कीम्स है, मिड कैप की 17 है, मल्टी कैप की 6 है, स्मॉल कैप की 10 है, वैल्यू फंड कोल्ट्रा फंड हम जिनको कहते हैं उनकी 10 स्कीम्स अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल फॉर यू विद फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इसमें आप रिटर्न देखिए कि अगर मैं लोएस्ट रिटर्न करूं, इसमें अगर मैं इक्विटी फंड लास्ट जो 10 ईयर्स का अगर मैं इसमें देखूं, ये लेटेस्ट डेटा है एज ऑन 28/2/2023 का। तो अगर मैं लोएस्ट रिटर्न भी इनकी देखूं तो वो भी डबल फिगर्स में है। आप देखिए कि डबल फिगर्स में है। अगर मेरे को 10-10.5% का रिटर्न आ रहा है, उसमें से 1 रुपया मैं निकाल दूं, उसका टैक्स का भी अगर मैं निकाल देता हूँ तो 9.5% है। तो 9.5% इन्फ्लेशन मेरी 6.5% है, तो 3% फिर भी मेरा एज है, जिसको हम एक्सेल रिटर्न कहते हैं, जिसको हम अल्फा कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। 3% का अल्फा मैंने क्रिएट किया है। दिस इज माई रियल रिटर्न। अगर मेरे को 10.5% की मिनिमम रिटर्न आती है, फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहा हूँ जिसमें मिनिमम रिटर्न आई है, या लार्ज कैप की 10.58 की, तो इसमें पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन भी 3% का मेरे को पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। आपको अगर मैं हाईएस्ट रिटर्न करूं तो 20% के आसपास है, एवरेज रिटर्न करूं तो 13-14-15% के आसपास है, लोअर रिटर्न भी 10% के आसपास है, जो कि कोई भी एफडी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद टोटल लिक्विडिटी विद टोटल ट्रांसपेरेंसी आपको आज की डेट में नहीं प्रोवाइड कर सकता। और सबसे बड़ी बात, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। टाइम द मार्केट होता है कि आप कहते हैं कि मैं आप जैसे आप कोशिश करते हैं कि मैं बेस्ट वैल्यू पे परचेज करूं, बेस्ट वैल्यू पे सेल करूं। तो आपने क्या किया कि बी बाइंग एट लो सेलिंग एट हाई, तो वो आप करने की वो टर्निंग करने की वो जगलिंग करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में क्या होता है कि कई बार काफी बड़ा नुकसान भी हो जाता है और वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। ये तो आप लगा के चलिए कि जितना आप कोशिश करेंगे मार्केट को पकड़ने की, मार्केट उतना ही आपको ल्यूड करेगी, मार्केट उतना ही आपकी पकड़ से बाहर जाएगा। तो जैसे हमें कंसिस्टेंटली स्टडी करना होता है कोई डिग्री क्वालिफाई करने के लिए, तो हम एक ऐसे नहीं कि लास्ट में 10-20 दिन 1 महीना करके कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते। तो आपको लगातार पढ़ना होता है, तो आपको मार्केट में लगातार इन्वेस्ट रहना है, मार्केट में बने रहना है। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। उसका मैं आपको एग्जांपल के साथ ये लेटेस्ट एक और मेरे पास डेटा है, ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं कि करंट वैल्यू जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ₹1,00,000 लगाया था इसमें, अगर मैंने ₹1,00,000 लगाया था 1 जनवरी 2003 को, आज 20 साल हो गए। आज उस 1 लाख की वैल्यू हमारी मेरी जो है वो बन चुकी है ₹14 लाख। ठीक है, तो ₹14 लाख वो उसकी मेरी वैल्यू 14 टाइम्स वो मेरा पैसा हो चुका है, 14 लाख मेरे वो पैसा बन चुका है। अब इसको सब ध्यान से देखिएगा, इसको इस स्लाइड पे फोकस करिए कि मार्केट में जो रिटर्न है ना, वो मार्केट में रिटर्न बनती है लॉन्गिटिविटी से। ठीक है, मार्केट में हर साल रिटर्न नहीं आती, डेली रिटर्न नहीं आती, हर महीने रिटर्न नहीं आती। ठीक है, मार्केट में लॉन्गिटिविटी में रिटर्न आती है। जितना आप लंबा रहेंगे उतना ही आपकी बेटर एवरेज रिटर्न होगी। तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर मैं 2 बेस्ट डेज निकाल लूँ मार्केट के, क्योंकि इन 10 साल में 2 दिन कुछ ऐसे थे कि जिस दिन बहुत अच्छी मार्केट ने जंप आया, बहुत बड़ा मार्केट में जंप आया, अगर वो मैं 2 दिन अगर मैं उसमें मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहता तो मेरे 14 लाख की वैल्यू 11 लाख रह जाती। तो मेरा 21% का नुकसान था। ₹3 लाख मैं मेरा वैल्यू कम होती, 1 लाख का 14 लाख ना बनता, 10 लाख बनता। अगर ये 10 साल के बेस्ट 5 डेज में निकाल देता तो मेरी वैल्यू 14 लाख से 870 आ जाती। बेस्ट 10 डेज में निकाल दूं, वैल्यू 6,32,000। बेस्ट 20 डेज 3,64,000। बेस्ट 30 डेज 2,23,000। बेस्ट 40 डेज 1 लाख। 1 लाख का सिर्फ 1,47,000 बना अगर मैंने बेस्ट 40 डेज उसमें से निकाल दिए। क्योंकि कुछ ऐसे दिन आते हैं मार्केट में हर साल या हर एक 5 साल 10 साल के पीरियड में, जब मार्केट बहुत जबरदस्त पुश लेता है, बहुत जबरदस्त जंप लेता है और आपका पैसा बनता है। तो ये तो हिस्टोरिकल है कि ये 40 दिन की अगर मैंने रिटर्न निकाल दी तो 14 एक अगर आप स्टेट इन्वेस्टेड आपने 14 लाख बनाया। अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करें, कभी निकल गए कभी आ गए, अगर आपने उस चक्कर में 2 बेस्ट डेज भी आपने अगर फोरगो कर दिया तो आपका पैसा 10 लाख बना। अगर 10 बेस्ट डे भी फोरगो कर दिया 6 लाख बना। अगर 40 अगर आप बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब है
सारे अच्छे दिन आपने मिस कर दिए तो आपका पैसा 1 लाख बनेगा। तो रादर टाइमिंग द मार्केट, रादर बी इन द मार्केट फॉर अ टाइम, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड। आप बने रहिए मार्केट में, कब किस दिन कितनी रिटर्न नहीं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे रीजन होते हैं ग्रो करने के और बहुत सारे रीजन होते हैं करेक्ट होने के, फॉल होने के। तो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट, stick to your financial goals, believe in Indian market, believe in economy. Abundance wealth is people are creating abundance wealth in the market and will create in the next 25 years. But the person who stayed invested will create wealth. Person who try to time the market will never create that much wealth as compared to the person who is stay invested. तो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। अगर मैं इसमें आगे बात करूं कि इसका अगर मैं कंक्लूजन लूं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग द मार्केट। आप मार्केट में रहिए अपने फाइनेंशियल गोल के साथ स्टिक करके, पैसा बनेगा, पैसा अपने आप बनेगा। उसके बाद अगर मैं पीपीएफ की यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं, तो पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट्स है पता है, जो पहले रेट्स होते थे वो अब नहीं है और ये लगातार रेट्स कम होते जा रहे हैं। तो ये 11% रेट था 2001 में, ठीक है, तो आज 7.10% पे रेट आ गया जो करंट रेट है। तो ये 9.5, 9, 8, 6, 7, 7 पर 10% ये आपका रेट फॉल होते गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने ये कंपेरिजन किया है टैक्स सेवर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का वर्सेस पीपीएफ, अगर मैंने 1.5 लाख रुपए जो हम एटीसी के लिए सेव करते हैं, अगर वो 1.5 लाख रुपया हम हर साल लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने 12,500 की एसआईपी लगाई है पर मंथ की, 1.5 लाख रुपए हर साल का लगाते हैं, 15 साल में हमने 22,50,000 रुपया प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया। तो आप जैसे आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वो पीपीएफ का जो एवरेज जो सीएजीआर है ड्यू टू दिस फॉल इन रेट, वो रेट निकल के आया 8.17, तो 22,50,000 का वैल्यू कितनी बनी है, 40,21,000। अगर यहाँ पे मैं वर्स्ट परफॉर्मिंग टैक्स सेवर की, और फॉर एग्जाम्पल आप पीपीएफ में भी बने रहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, पीपीएफ में बने रहते हैं निकलते नहीं, क्योंकि लॉक इन पीरियड होता है और 15 साल का होता है। एक बार एक जो माइंड है ना वो एक ट्यून हो चुका है कि मेरे को पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करिए तो 15 साल बाद देखूंगा और हर साल पैसे डालता हूँ। सेम माइंडसेट लेके आपको टैक्स सेवर में आना है। पैसे ही आपने 12,500 रुपया मंथली आपने डालना है या 1.5 लाख रुपया मंथली ईयरली आपने डालना है। और पीपीएफ की तरफ 15 साल के बाद आप देखेंगे, तो अगर तो वर्स्ट परफॉर्मिंग ईयर्स की बात करूं कि किसी की किस्मत खराब है, उसका फंड परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो उसमें भी 59 लाख बना और उसमें भी 12% की सीएजीआर आई है। अगर एवरेज अगर हम देखें रिटर्न, एवरेज रिटर्न से भी 22 लाख का 69 लाख बना है, 13.77% की रिटर्न आई है। अगर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग टैक्स सेवर के ऊपर जाता हूँ तो 22,50,000 का 95,63,000 बना है। ये तो मतलब कि एक बेस्ट आपकी बहुत आपका स्ट्रॉन्ग लक है और आपकी जो फंड है उसने वो बेस्ट कैटेगरी में फॉल है कर गया है और बहुत अच्छी रिटर्न आ रही है, तो आपका 17% है। अगर मैं बस को भी कंपेयर करूँ पीपीएफ से, तो भी उसमें 4% का अल्फा है, ठीक है। नो डाउट की पीपीएफ बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें टैक्स नहीं है, विद एटीसी बेनिफिट है। म्यूचुअल फंड में टैक्स है, पीपीएफ टैक्स फ्री है, म्यूचुअल फंड में टैक्स है। अगर आप एटीसी का बेनिफिट म्यूचुअल फंड में आ गया वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया पीपीएफ और ईएलएसएस। अगर आप टैक्सेशन की बात करें वहां पे टैक्स भी है, 8.17 इज अ ग्रोस एंड नेट। अगर 12% में अगर आप इसमें से क्या कहते हैं 1 लाख की एग्जम्पशन आपको मिलती है और उसका टैक्स 20% अप्रोक्सीमेटली टैक्स निकाल लेते हैं, तो भी आपको इसका अल्फा है। वर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो भी 1.25% से आपको अल्फा है, एक्स्ट्रा रिटर्न है पीपीएफ से। और पीपीएफ में लॉक इन पीरियड 6 7 ईयर्स का है, उसके बाद पार्शियल विड्रॉल स्टार्ट होती है। और टैक्स पेपर में मिनिमम लॉक इन पीरियड है, एटीसी में जो एज पर इनकम टैक्स है वो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड, उसके बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन आप पैसा निकालिए नहीं, पीपीएफ वाला माइंडसेट रखिए, 15 साल फाइनेंशियल गोल के साथ स्टिक लीजिए रहिए और आपकी रिटर्न इसमें बने। स्टे डिसिप्लिन, इन्वेस्ट रेगुलरली। तो इस डिसिप्लिन की बात होगी कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, रादर इन द मार्केट फॉर अ टाइम। डिसिप्लिन से आप बने रहिए, ठीक है। रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, तो रेगुलरली इन्वेस्ट आपने करना है। तो ये है मार्केट, ये जो मैंने पहले आपसे किया था कि करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो ये देखिए कि ये करेक्शन आ रही है डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे ये जो वाजपेयी साहब की इलेक्टेड गवर्नमेंट 13 डेज में कोलैप्स कर गई ड्यू टू लैक ऑफ मेजोरिटी। यहाँ पे फिर एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई, फिर स्टॉक मार्केट का स्कैंडल आया, पी नोट्स का आया, यूपीए वन विंस इलेक्शन, ये और अफवाह लफा यूपीए 2 आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ठीक है। यहाँ पे आपका एनडीए विंस, फिर मार्केट चढ़ गई, जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये डिनोमिनेट ये डिमोनेटाइजेशन आया, तो फिर मार्केट फॉल हो गई। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स फ्लैश हुए, फिर मार्केट बढ़ी।
ठीक है, यहाँ पे कोविड आया, कोविड पे फिर मार्केट ग्लोबल पेंडेमिक आया, फिर नीचे गिरी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। मार्केट 100 रुपए से आज 66,000 पे है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आज के वेबिनार से, अगर आपको सिर्फ दो चीजें अगर आपको याद रखनी है, पहली करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, एंड सेकंड प्लीज चेक योर पर्सनल इन्फ्लेशन एंड चेक योर पर्सनल रियल रिटर्न, कि मेरी पर्सनल इन्फ्लेशन क्या है, मेरे खर्चे कितने साल में डबल हो रहे हैं, मेरी रियल रिटर्न मैं क्या कमा रहा हूँ। और सेकंड, करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो यहाँ पे करेक्शन की ही बात हो रही है कि अगर मैं करेक्शन की बात करूँ तो ये 15, ये सेंसेक्स हाई है 15 एक ही साल में, उसी साल में ये सेंसेक्स लो है। हाई से 2001 में हाई से सेंसेक्स 44,100 से 2600 पे आपका ये डाइव हुआ। तो इसमें प्लंज होने के बाद 41% की करेक्शन आई। तो अगले एक साल में कितनी रिटर्न आई? 16% की। 2 साल की एवरेज रिटर्न 27% की थी। 5 साल की एवरेज 36% की। तो करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच्चाई है, वो रहेगी इंडिया के लिए, कम से कम रहेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ग्रोथ पेंडिंग है। पॉपुलेशन इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हर चीज की। इंडिया अभी गोल्डन ईरा में एंटर किया है। अगले ये जो 25 साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है 2047 तक, जब हमारे 100 साल होंगे, तो तब तक जो आत्मनिर्भर भारत है, जो सब ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आगे चल रही है, जो आगे हमारे ग्रोथ है, कोई भी सरकार आए ग्रोथ नहीं रुकने वाली है, क्योंकि अब हमारी पब्लिक को अभी सब कुछ चाहिए। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड। एंड अभी कोई भी आप करेक्शन देखिए कि आपको किसी भी करेक्शन के बाद, अगर हम यहाँ पे 5 साल की एवरेज रिटर्न लीजिए, कोई भी करेक्शन के बाद, चाहे कोई भी करेक्शन है, 38% की करेक्शन भी है, 26% की करेक्शन भी है, तो एवरेज रिटर्न अगर 5 साल की जगह, 5 साल की एवरेज रिटर्न जो CAGR है 11.69 है, मिनिमम डबल फिगर में है। कहने का मतलब कि हर साल 11% की रिटर्न आई करेक्शन के बाद, हर साल 11% की। तो उसने अपने आप को रिकवर किया और आपको बेटर रिटर्न दी एज कम्पेयर टू अदर अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आगे बात करूं, अगर SIP, मोस्टली आप सभी SIP के बारे में जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसको हम स्लीप इन पीस भी कहते हैं, और काफी और भी कई नाम दिए जाते हैं इसको मार्केट में। और इसको अगर हम SIP आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाई होगी, नहीं लगाई तो उसको स्टार्ट कीजिए। इकोनॉमी में ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी शेयर है। इकोनॉमी के प्रॉफिट को, GDP ग्रोथ को अगर आपने घर पे लेके आना है, तो आप सिंपल स्टार्ट SIP फॉर योर किड्स, फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में पैसा है, आप हर साल हर महीने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई RD करवाते हैं, या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कुछ आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होती है, हर साल FD करवाते हैं। सेम आपको उसको थोड़ा सा डिवर्सिफाई करना है, वहां भी बने रहिए, म्यूचुअल फंड में भी डालिए, ताकि आपको इकोनॉमी का बेनिफिट मिले। फिर आपको म्यूचुअल फंड के SIP में सेम आप अपनी डेट डेजिग्नेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अकाउंट में से पैसा डेबिट होगा। जैसे आपकी EMI जाती है, एक बार आपको एक SI लगानी है, स्टैंडिंग लगानी है, हर महीने आपका पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहेगा थ्रू SIP। अब SIP काम कैसे करती है? अमाउंट इज ऑटो डेबिटेड, इज इन्वेस्टेड इन सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, अगर आपको उसकी नॉलेज है या आपके पास टाइम है, नहीं तो आप किसी एडवाइजर को हायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क होता है, आप देख के कीजिए, चेक करके कीजिए, बी विजिलेंट। तो जैसे हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए। तो इसमें क्या है कि रिस्क है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कि कौन सी स्कीम मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या वो मेरे रिस्क एपेटाइट से मैच करती है नहीं करती। या तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की प्रोफेशन की सर्विस लीजिए। डोंट गो फॉर प्रोडक्ट सेलिंग एंड प्रोडक्ट बाइंग। जैसे क्या होता है कि हम इंश्योरेंस खरीदते हैं या कोई PPF में पैसा डाल देते हैं, या हम एडवाइस किसकी लेते हैं कि मेरे किसी रिलेटिव ने कह दिया, मेरे पापा ने कह दिया, मेरे बड़े भाई ने कह दिया, मेरे छोटे भाई ने कह दिया, मेरे चाचा जी ने कह दिया। डोंट पुट योर मनी एट रिस्क ऑन दीज एडवाइसेस। क्या उनका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट के साथ? जो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट चल रही है, क्या उनका एक्सपीरियंस है? उन्होंने कितनी वेल्थ क्रिएट की है, पहले ये देखिए। क्या उनको नॉलेज है? क्या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है? क्या उनके पास वो एक्सपोजर है? क्या उनके पास वो स्किल है? क्या वो उनके पास वो टाइम है? एक बार आप किसी एडवाइस लेते हैं और उसको फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो पैसा आपका हार्ड एंड मनी है। वो पैसा एक बहुत बुरी फीलिंग आती है कि 10-15 साल के बाद आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है।
और आपने बड़ा वो इतनी हम मुश्किल से पैसे कमाते हैं इतना इसलिए हमने उस पैसे को नहीं लगाना है, तो इसको थोड़ा रिसर्च करके लगाइए, अपनी सुटेबल स्कीम आपके लिए देखिए। यूनिट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन द नैब ऑफ द स्कीम, इन्वेस्टर्स कैन रिडीम स्विच यूनिट्स एनी टाइम। तो आप जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने ₹1,00,000 लगाया उसकी नैब चल 10 रुपए, तो 10,000 रुपये नैब होती है प्राइस, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है कितने का वो यूनिट आप मिल रहा है म्यूचुअल फंड की प्राइस। तो अगर वो 10 रुपये प्राइस है तो ₹1,00,000 के ऊपर 10 रुपये डिवाइड करके 10,000 यूनिट्स आपको मिलेंगे। अगर वो 20 रुपये पे पहुंच गया तो आपको 5,000 यूनिट्स मिलेंगे। तो आप इसमें से कभी भी म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं, डीम भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे सिर्फ काम करती है। अब बेनिफिट ऑफ सिर्फ क्या है? पहली बात है कि इट्स ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है क्योंकि क्या है कि अगर आपने 50,000 की आज ऐसे भी लगा दिए वो चलती जाएगी। आप आपको क्या करना है, हर 6 महीने साल में उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, और हर साल जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी को भी बढ़ाना है। तो उसको हम टॉप अप सिप का भी नाम देते हैं कि हर साल मैं 10% से या 20% से या कुछ परसेंटेज से या किसी फिक्स अमाउंट से अपनी एसआईपी को बढ़ाऊंगा हर साल 12 महीने बाद। क्योंकि हर साल खर्चे भी बढ़ रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, हर साल मेरी इनकम भी बढ़ती है लेकिन मेरी एसआईपी नहीं बढ़ती है। तो आप ऐसे भी लगाइए, 50,000 से फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट किया, 25,000 से स्टार्ट किया, ₹1,00,000 से स्टार्ट किया, फिर साल के बाद उसको 1,10,000 का कर दीजिए, फिर 2 साल के बाद उसको 1,20,000 का कर दीजिए, 3 साल बाद उसको 1,30,000। ऐसे धीरे धीरे आप मंथली आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी, तो डिसिप्लिन से तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी और आप अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशन, अपने ड्रीम अचीव कर सकते हैं। पी कॉस्टिंग, कॉस्ट एवरेजिंग इसमें आपको मिलती है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। मार्केट टाइमिंग, रिस्क मिनिमाइज, तो आपको एक फंड मैनेजमेंट है, आपके पास फंड मैनेजर है, तो वो आपको जैसे ये मार्केट टाइमिंग है जिसका आपका मिनिमाइज्ड है, आपको मार्केटिंग टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है, उसको पता है कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कौन से निकालने हैं, तो वो आपके लिए काम कर रहा है। इसमें मार्केट टाइमिंग आपकी मिनिमाइज्ड है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, अगर 10 साल में हमें 10 साल के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम सब जानते हैं, एज पर आइंस्टाइन इट्स द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड अर्न्स इट एंड वन हु डजंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लेज इट। फॉर एग्जांपल जैसे लोन में हम इंटरेस्ट पे करते हैं और म्यूचुअल फंड एसआईपी में हम रिटर्न गेन करते हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, लोन भी चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कंपाउंडिंग की इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल आज ₹10 का यूनिट आपने खरीदा, वो ग्रो कर करके ₹550 का हो गया या ₹1,200 का हो गया। तो ₹10 की चीज ₹1,200 की होगी, तो ₹1,190 जो एक यूनिट में प्रॉफिट है वो क्या है, वो कंपाउंडिंग है। वो ईयर टू ईयर यूनिट ग्रो करता गया, प्राइस बढ़ती गई, तो वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको उसको मिल रहा है। ब्याज के ऊपर ब्याज, रेट रिटर्न के ऊपर रिटर्न, क्योंकि यूनिट की प्राइस बढ़ती गई, क्योंकि आपने पैसा कभी निकाला नहीं और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप स्टेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कैन आप किसी भी स्मॉल अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियल गोल्स आप अपने अचीव कर सकते हैं, तो इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, जब आपका फाइनेंशियल गोल अराइव होगा तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अब रिपीट कॉस्टिंग एवरेजिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लमसम पैसा लगाया ₹90,000 और आपका उसका उसकी जो यूनिट की प्राइस थी ₹20 थी, तो आपको 45 यूनिट मिले, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है इज इक्वल टू एवरेज प्राइस। तो एवरेज हमेशा कॉस्ट देखी जाती है, जैसे हम जानते हैं कॉस्टिंग हम करते हैं, कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस, कि मेरे को घर पे ये कितने का सामान पड़ा। अगर आपने लमसम में खरीदा तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज प्राइस। लेकिन अगर आप उस लमसम लगाया और साथ में एसआईपी भी लगाई, तो एसआईपी में आपको एरबी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको आपने खरीदा ₹20 पे, पहले महीने खरीदा, तो मार्केट करंट हुई, तो वो जो उसकी प्राइस है वो 17 रुपीज पे आ गई, मार्केट द्वारा ग्रो करी, बाउंस बैक करी, इस पे का वो यूनिट हो गया, फिर 16, 13, 15, 19, 20, 22, अल्टीमेटली फिर वो 22 पे पहुंच गया। तो आप हर साल जो आपकी ऐसे हर महीने जो आपकी एसआईपी जा रही है, आपको अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट मिलते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय नैव इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अलग अलग यूनिट जब आप इन यूनिट्स को टोटल करते हैं, और आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 90,000, इन यूनिट्स का टोटल आया ₹5106.18। 5106 यूनिट्स आपको मिले, उसको आपने टोटल अपनी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 90,000 से आपने डिवाइड किया, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो आई ₹18.11। क्योंकि आपने कुछ यूनिट ₹20 पे खरीदे, कुछ ₹13 पे खरीदे, कुछ फिर ₹22 पे खरीदे। तो यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलता है, रीजन की मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट ऊपर नीचे चलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे ₹20 कॉस्ट पड़ी थी आपको, भी मेरे को घर पे ये ₹20 का पड़ी ये चीज, जहाँ पे आपको ये घर पे पड़ी ₹18 की, 20 की नहीं पड़ी, 17 की नहीं पड़ी, 22 की नहीं पड़ी, ₹13 की नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें आपको टोटल प्रिंसिपल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इज योर
average cost price which is your total cost price for buying those number of units. तो ये आपको बेनिफिट मिलता है एसआईपी में। अगर मैं एसआईपी ब्रिंग्स डिसिप्लिन, अब मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप एसआईपी हमेशा अपनी इनकम की डेट्स के हिसाब से लगाइए। फॉर एग्जांपल किसी तो कोई सैलरीड पर्सन है तो हमेशा 2 3 4 तारीख को आप आपने जो भी एसआईपी फिक्स की है 20,000 25,000 50,000 लाख 2 लाख कुछ भी फिक्स करिए, उसको आप पहले अपने अकाउंट से डेबिट हो जाने दीजिए। तो ये जो एक हमारा जो फार्मूला है, जो हम 95% लोग जो करते हैं, इनकम माइनस स्पेंडिंग इक्वल टू सेविंग। देखिए, जो स्पेंडिंग है उसमें 3 तरह की स्पेंडिंग होती है। एक होती है आपकी नीड्स, जो बेसिक नीड्स है, जिसमें से आपकी कम से कम 50% इनकम जाती है अप्रोक्सीमेटली। फॉर एग्जाम्पल कि जो आपकी बेसिक नीड्स है, जिसमें ग्रोसरी है, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, या कुछ भी है। 30% एक आइडियल फार्मूला की बात कर रहा हूँ कि बॉन्ड्स में जाता है, कि जो भी आपका एंटरटेनमेंट है, वेकेशंस हैं, गैजेट्स परचेज कर रहे हैं, गाड़ी बदलनी है, या कुछ और कुछ कर रहे हैं, 30% बॉन्ड में जाता है, मिनिमम 20% आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो ये फार्मूला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इनकम आई 100 रुपये, उसमें से जो बच गया वो सेव कर लेते हैं, क्योंकि कोई गोल नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि मैंने 20 रुपये प्लान किए, 100 रुपये से पहले मैं वो निकाल दूंगा। उसके बाद मेरे बेसिक एक्सपेंसिव फॉर एग्जाम्पल 60 रुपये हो गए, वो निकल जाएंगे। 20 रुपये फिर बच गए मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए, अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए। तो बेसिक नीड्स में 50% जाएगा, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और वांट्स में आपका 30% जाएगा, 20% आपकी सेविंग मिनिमम होनी चाहिए। तो वो तभी हो पाएगी अगर हम 20% को पहले लेंगे। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। 80 में से वो बेसिक नीड्स में जाए या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में जाए, वांट्स में जाए, कितना भी जाए, लेकिन 20% आपको पहले सेव करना है। ये एक वो, अगर वो चीज आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अगर ये आपने टारगेट अचीव कर लिया, आप 100% क्रिएट करेंगे। ये टारगेट अचीव करने में सिर्फ आपको हेल्प करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी इनकम जिस दिन आती है उसके 2 3 दिन में आप एसआईपी अपनी निकाल दीजिए। 15 को आती है तो 20 तक आपकी एसआईपी चल जाए, 1 को आती है तो 5 तक आपकी एसआईपी चल जाए। तो ये फार्मूला जो नीचे जो हमने थम्स अप दिया है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू स्पेंडिंग वाला फार्मूला, बड़े इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। नाउ कि अगर मैं, अगला है कि इसको स्टार्ट अर्ली, द कीज टू स्टार्ट अर्ली। ये देखिए, डिले कॉस्ट इज अनदर डेविल। जैसे इन्फ्लेशन की हमने बात करी कि इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी परसेंट इन्फ्लेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, डिले कॉस्ट है ना, वो भी एक डेविल है। अब यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 लड़कों की एग्जांपल लिया है कि एक ने 25 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, एक ने कहा कि यार अभी तो मेरे 25 साल में मेरी जॉब लगी है, अभी तो रिटायरमेंट बड़ी दूर है, पहले आराम से मजे करते हैं। 5 साल क्या है कि अपने सारा घूमते फिरते हैं, गैजेट्स वगैरह ये वो गाड़ी गुड़ी लेते हैं, ईएमआई के ऊपर जिंदगी, ईएमआई लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले ईएमआई वगैरह सब कुछ पहले चीजें अचीव कर लेते हैं। ईएमआई से सब कुछ आजकल मिलता है। तो एक ने 25 साल पे स्टार्ट करी, अगले ने 5 साल बाद स्टार्ट करी, सब कुछ ईएमआई वगैरह पे बना लिए, ईएमआई में पैसा जाता रहा। और जब ऐसे भी स्टार्ट करनी तब उसका बजट भी कम था, क्योंकि ईएमआई हैवी थी। और एक था, एक और उस जहां ने उससे भी ज्यादा ली थी, 25 ईयर्स पे स्टार्ट हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर तीनों ने अपनी 55 साल पे अपनी रिटायरमेंट प्लान करी है, तो पहले राज ने इन्वेस्टमेंट करी 30 ईयर्स के लिए, तीरथ ने इन्वेस्टमेंट करी 25 ईयर्स के लिए, जहां ने इन्वेस्टमेंट करी 20 ईयर्स के लिए। इसमें assumed रिटर्न 12% है, इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए, क्योंकि रिटर्न कितनी आएगी डिपेंड करता है आपकी स्कीम के ऊपर, आपकी पेशेंस के ऊपर, और आपके गोल्स कितनी दूर है उसके ऊपर, ठीक है, इक्विटी के ऊपर, डेट के ऊपर। तो इसमें क्या है कि आप ये देखिए कि राज तीनों तीनों ने जो 5 ईयर की एसआईपी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो अब राज का जो जो वेल्थ क्रिएट हुई है, राज की जो वेल्थ क्रिएट हुई है वो 1,73,00,000, ठीक है। और तीरथ जो 5 साल लेट शुरू हुआ था, उसने इन्वेस्टमेंट कितनी कम करी है, 5,000 इंटू 12, 60,000 इंटू 5, सिर्फ 3 लाख, ठीक है। 3 लाख रुपए उसने कम इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन वेल्थ में देखिए कितना फर्क पड़ा है, 1,73,00,000 का रह गया 96 लाख। तो 77 लाख का फर्क रह का डिफरेंस आ गया, ड्यू टू ओनली लो इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख। यहाँ पे क्यों इतना फर्क आया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब जो जहान है उसने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है, उसने 6 लाख कम इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट कम करने से उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ रह गई है एज कम्पेयर टू राज। तो ये है डिले कॉस्ट इतनी जबरदस्त पड़ती है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको याद है वो ये गलती नहीं करेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा होनी, आप याद रखिए कि आप 3 लाख रुपए कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको 77 लाख का नुकसान हो रहा है,
और 6 लाख रुपए कम इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्योंकि उसको वो उसका हाफ ही रह जाती है, 173 का हाफ ही उसका ऑलमोस्ट वो पैसा उसका रह जाता है। कारण ये है कि जो 3 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए राज ने एज कम्पेयर टू तीरथ, या जो 6 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए राज ने एज कम्पेयर टू जहान, वो 3-6 साल के ऊपर रिटर्न आनी थी 55 साल तक। ठीक है, तो वो कंपाउंडिंग की वजह से इतना फर्क है। तो नेवर डिले योर इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट इमीडिएटली। अगर मैं यहाँ पे सिप रिटर्न्स की बात करूँ तो हमेशा लॉन्गर टर्म में हमने बात करनी है। आप जब भी अगर हम एक कोई डेटा एनालिसिस करें, मैं 5 साल 10-15 साल का आपको डेटा दिखाऊंगा, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रिटर्न्स है सिप रिटर्न एनालिसिस फॉर 5 ईयर्स ऑफ पीरियड ऑफ वेरियस कैटेगरी। तो अगर मैं लार्ज कैप कैटेगरी लूँ, मिड कैप कैटेगरी लूँ, तो अगर मैं एवरेज रिटर्न लूँ, तो ये देखिए सारी डबल फिगर्स में रिटर्न है। ठीक है, एक्सेप्ट की 2 फंड्स है, टैक्सेवर और फ्लेक्सिकल, जिसमें लोएस्ट रिटर्न की अगर बात करूँ 9% है, 9.5% है। लोएस्ट रिटर्न की अगर मैं बात करूँ 13% है, 18.5, 14, 11.5% रिटर्न है। अगर मैं हाईएस्ट रिटर्न की बात करूँ तो ये देखिए 27-28% तक भी रिटर्न गए। तो इसमें कितने कितने फंड का एनालिसिस हमने किया है, जिसमें लार्ज कैप फंड 26 हमने चूज किए हैं, मिड कैप फंड 22 हमने इस पर सर्च किया है। इसमें 15% से ऊपर जो रिटर्न आई है, कितने फंड्स की रिटर्न आई है 15% से ऊपर? 13 फंड्स की। 12 फंड्स की रिटर्न, 23 फंड की 12% से ऊपर रिटर्न आई है 26 फंड में। और 26 से 26 फंड्स की रिटर्न 10% से ऊपर आई है, क्योंकि लोएस्ट रिटर्न क्या है 11.56%। तो ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि अगर आप लोएस्ट रिटर्न भी लेते हैं तो भी वो डबल फिगर में है। तो इट मैटर्स कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, सूटेबल है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म में अगर आपकी स्कीम ठीक नहीं भी चलती है, तो भी लॉस रिटर्न जो है वो 10-11-12% आपको रिटर्न कमा के देता है, जो कि और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारी रियल रिटर्न बनेगी बनेगी, हम अपनी इन्फ्लेशन को यहाँ पे बड़े आराम से बीट करेंगे। अगर यही मैं 10 साल का डेटा लूँ, तो 10 साल के डेटा में आप ये देखिए कि ये 10 साल का डेटा के हाईएस्ट रिटर्न में 15%, 18, 23, 18, एवरेज रिटर्न में 12, 16, 19, लोएस्ट रिटर्न में 9, 13, 13। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फंड्स कितने इसको चूज किए इस रिसर्च के लिए? 25% फंड, 25 फंड चूज किए लार्ज कैप के, 17 फंड मिड कैप के चूज किए, रैंडमली फंड चूज किए। अब ये देखिए कि इसमें अगर 10% से प्लस रिटर्न की अगर मैं बात करूं, तो लार्ज कैप में और 25 में से 24 फंड ने 10% से ज्यादा रिटर्न दी। बाकियों में मिड कैप में 100% फंड्स ने 10% से ज्यादा रिटर्न दी है, स्मॉल कैप में 100% ने दी है, लार्ज मिड कैप में 100% दी है, फ्लेक्सी कैप में 14% फंड ने 10% मोर देन 10% रिटर्न दी है, टैक्स सेवर ने 100% फंड ने 10% प्लस रिटर्न दी है। तो 10% प्लस रिटर्न तो बनेगी ही बनेगी बड़े आराम से। डेटा इज स्पीकिंग इटसेल्फ। 15 साल के डेटा पे अगर हम आते हैं, तो 15 साल में अगर हमने देखा कि हाईएस्ट रिटर्न, एवरेज, लोएस्ट रिटर्न है, तो इसमें देखिए कि लार्ज कैप में 10% प्लस रिटर्न 17 में से 16 फंड ने दी है, मिड कैप 100% फंड ने 10% प्लस रिटर्न दी है, स्मॉल कैप 100%, लार्ज मिड कैप 100%, फ्लेक्सी कैप में 9 आउट ऑफ 11 फंड्स हैव गिवन मोर देन 10% रिटर्न्स इन द लास्ट 15 ईयर्स। टैक्स सेवर में 100% फंड्स हैव गिवन मोर देन 10% रिटर्न इन द लास्ट 15 ईयर। तो हर साल 10% से ज्यादा आपको रिटर्न आ रही है 5 साल 10 साल 15 साल से। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर म्यूचुअल फंड? टीम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं वर्स्ट की अगर बात करूं, वर्स्ट में भी 10% से ज्यादा रिटर्न है। चूज द राइट इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब मैं अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं, कि यहाँ पे हम गोल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं गोल प्लानिंग की बात करूं, राइट सिप फॉर एजुकेशन। देखिए आज की डेट में एजुकेशन और मैरिज का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर। नॉर्मली अगर अगर हम बात करें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की, जैसे मैंने बोला कि हमारे खर्चे कितने साल में डबल हो रहे हैं, तो अगर मेरे खर्चे 6 साल में डबल हो रहे हैं, तो मेरी 12% की इन्फ्लेशन है, परसेंट इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है 6 साल में सभी के खर्चे डबल हो रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे 12% पे अगर आपकी इन्फ्लेशन फिगर है, तो आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैंने 7% ह्यूमन इन्फ्लेशन ली है, लेकिन रियल मायने में जो एजुकेशन और मैरिज की इन्फ्लेशन है वो भी 10-11% है। तो नॉर्मल आप इन्फ्लेशन 10 से 12% आप नहीं लगा के चलिए। ठीक है, तो अगर 7% भी मैं इन्फ्लेशन लेता हूँ, तो किसी एजुकेशन को अगर आज 10 लाख रुपया आपको चाहिए, वही एजुकेशन 20 लाख में होगी 10 साल के बाद, अगर हम अज्यूम इन्फ्लेशन 7% पे लेते हैं। वेयर एज आई ऑलरेडी सेड, इन्फ्लेशन एजुकेशन और मैरिज में मच मोर देन 7%। अगर 7% भी मान के चले, तो 10 लाख वाली एजुकेशन 10 साल बाद 20 लाख की हो रही है। तो आपको प्लान करना है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन 10 साल दूर है, या मेरे बच्चे की मैरिज 15 साल दूर है, तो मेरे को वो मैरिज जो है, ये फ्यूचर वैल्यू के टाइम वैल्यू मनी में जो फार्मूलाज आते हैं, फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया है।
तो 10 लाख वाली एजुकेशन आपकी 20 लाख में होगी, तो उसके लिए आपको मंथली एसआईपी अप्रोक्सीमेटली 80-100 की लगानी है। तो आपके बच्चे एक बच्चे की एजुकेशन प्लान है कि 10 साल बाद 20 लाख है, यहाँ पे 10 लाख एग्जाम्पल लिए है। अगर आप इसको 20 कर लो तो ये 40 लाख रुपए बन जाएगा। 40 लाख के लिए आपकी जो जो वो एसआईपी है वो आपकी 17,000 पे पहुंच जाएगी मंथली एसआईपी। तो ऐसे आप अपनी प्लान कर सकते हैं कि मेरे को कितनी एसआईपी लगानी है, फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन अपनी कीजिए। फाइनेंशियल गोल के कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसके हिसाब से कीजिए, अपनी सिप प्लान कीजिए। एंड बी श्योर, बी एट पीस कि मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन ऐसे भी लगा दी। 20 साल बाद कितना पैसा चाहिए मुझे पता है, मेरे को रिटर्न कितनी आनी है आइडिया, उसका आइडिया है, पैसा रिक्वायरमेंट कितनी उसका आइडिया है। उसके उस एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से मैंने एसआईपी लगा दी, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। मे बी लैग बिहाइंड मार्जिनली, और मैं सरपास भी कर सकता हूँ, मैं अपना ब्रेक इवन भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने ठीक डायरेक्शन में तैयारी करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है कि 10 साल बाद मेरे को एक चीज जो है उसके लिए कितना पैसा चाहिए, और मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें रिटर्न कितनी आएगी, तो फिर हम कैसे अपने गोल्स अचीव करेंगे। तो इट्स अ टाइम ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, इट्स अ टाइम ऑफ फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन। तो मैं यही हमेशा समझाता हूँ कि फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्गेटिविटी में कीजिए, स्टेड इन्वेस्टमेंट। 3 साल का पीरियड है तो डेट में रहिए, 3 से 5 साल है तो आप मिक्सचर में चल सकते हैं, डेट इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में, और 21 से ऊपर है तो आप बड़े आराम से इक्विटी में जा सकते हैं। गोल प्लानिंग कीजिए, आपको टारगेट पता होना चाहिए कि मेरा जो पहाड़ में चढ़ना वो कितना ऊंचा है, और मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर मैं आपको रिटायरमेंट की लूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये देखिए कि 50,000 अगर आज आपका मंथली एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो आफ्टर 30 साल के बाद आपने रिटायर होना है, तो आपको 8.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, और उसके लिए आपको 27,000 पर मंथ की एसआईपी लगानी है। ये कैलकुलेशन होगी, आपने कर ली, अब आपने एसआईपी लगानी है। तो आप एक माइंड में एक आपके प्लान है, मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसमें हमने जम्पशंस क्या नहीं है। आपकी करंट एज 30 ईयर्स है, रिटायरमेंट आपकी 60 ईयर्स पे आपने प्लान किया, 30 साल के पास आपके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है। अब ये जो 8.5 करोड़ का 8.37 लाख करोड़ का जो कॉर्पस है, ये आपको कॉर्पस चाहिए 60 साल पे, जो कि आपके अगले 20 साल, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 साल 80 ईयर्स है, वो 20 साल आपकी एक पीसफुली, और आपका आप इंजॉय कर सको अपने गोल्डन टाइम को, गोल्डन ईरा को। तो उसके लिए हमें उस 20 साल के लिए 8.5 करोड़ रुपए चाहिए। इसमें हमने assumption के लिए कि इन्फ्लेशन मैंने अभी ली है 7% की, ठीक है, और पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न मैंने इसमें अपना लिए 8% की। जब मैं पैसा मेरे पास 8.5 लाख 8 करोड़ 37 लाख मेरे पास होगा, उसको मैं आगे जब मैं इन्वेस्ट करूंगा एट द एज ऑफ 60, तो 8% उसके ऊपर रिटर्न आएगी। ठीक है, आज मैं 30 साल से जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, अप टू 60 ईयर्स ऑफ माई रिटायरमेंट एज, 30 साल के जो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा उसके ऊपर मैंने एज्यूम किया कि एवरेज 12% रिटर्न आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इन्फ्लेशन 7% मैंने अभी ली है आपकी, इसलिए इन्फ्लेशन जो ली है, तो आप ये देखिए कि आज का जो 50% का खर्च, 50,000 का खर्चा है, वो 60 साल पे 30 साल बाद वो मंथली एक्सपेंस आपका हो जाएगा 3.81 लाख। तो 50,000 का एक्सपेंस जो है वो 4 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। वो 4 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस अगले 20 साल के लिए, 48 लाख रुपया साल का, उसको 20 से हम मल्टीप्लाई करें, तो वो जो मुझे पैसा चाहिए, और 4 लाख रुपया मेरा मंथली एक्सपेंस होने वाला है जब मैं 60 साल पे पहुंचूंगा। फिर 20 साल के लिए वो 4 लाख रुपया, उसमें भी इन्फ्लेशन के साथ वो भी पैसा बढ़ता जाएगा, उसमें भी इन्फ्लेशन 7% है। तो वो सारा ये जो जो हमने ये जो फ्यूचर वैल्यू जो निकाली है टाइम वैल्यू मनी के फार्मूला यूज करके, ये उसका ये रिजल्ट है कि 50,000 वाला खर्चा 3.81 लाख होने वाला आफ्टर 30 ईयर्स, और आपको 8 करोड़ 37 लाख का कॉर्पस चाहिए अगले 20 साल के लिए। उसके लिए आपको 27,000 की एसआईपी लगानी है। तो ये अब आपने फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन कर दिया, आपकी रिटायरमेंट प्लान होगी। तो आप जस्ट फॉलो योर प्लान, 27,000 की एसआईपी यहाँ पे लगानी है, 9,000 की यहाँ पे लगानी है, 36,000 की है आपकी एक बच्चे की एजुकेशन। इस assumption, फॉर एग्जाम्पल एज 30 है आपकी, इस assumption के आपने कैलकुलेशन कर ली कि 36,000 में मेरे दो गोल अचीव हो गए, एक बच्चे की एजुकेशन, एक मेरी रिटायरमेंट। अब मेरे पास बजट है 50,000, अब 14,000 मेरे पास अभी पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेकंड बच्चा है, मैं उसकी एजुकेशन प्लान कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बच्चा है, मैं उसकी मैरिज प्लान कर सकता हूँ। मैं कोई और अपने, मेरे को घर बनाना है, उसके लिए से एसआईपी लगा सकता हूँ। मेरे को ड्रीम वेकेशन करनी है, मेरे को गाड़ी ड्रीम कार लेनी है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ।
अब हर साल इनकम बढ़ेगी, एसआईपी खर्चे बढ़ेंगे, एसआईपी बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर ली कि 2+2 की फैमिली है, 2 बच्चों की एजुकेशन करनी है, 2 की मैरिज करनी है, ठीक है, और एक वेकेशन भी करना है, इंटरनेशनल वेकेशन एक करना है, और प्लस घर भी बनाना है, और आपकी रिटायरमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिप की रिक्वायरमेंट निकला है 1 लाख रुपया, तो आज आपका बजट है 40,000 का। अब 40,000 से पहले 2 गोल से आप स्टार्ट, तो हर साल आपको ऐसे भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि आपकी सिक्योर रिक्वायरमेंट 1 लाख है। हर साल आपकी इनकम बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो फ्यूचर की भी हमने सेफ्टी रखनी है। हर साल अपनी एसआईपी इंक्रीज करते जाइए। टोटल फाइनेंशियल गोल जो कैलकुलेशन करी, जब तक आप उस फिगर को अचीव नहीं कर लेते, तो आप हर साल अपनी एसआईपी बढ़ाते जाइए। तो ऐसे आज की डेट में ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ऐसे नहीं कि डोंट बी ए प्रोडक्ट बायर। मार्केट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रही है और हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। कैसे? तो किसी इंश्योरेंस में पैसा लगा दिया, पीपीएफ में पैसा डाल दिया, एफडी में पैसा डाल दिया, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, कहीं भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, गोल्ड खरीद लिया। यही सब कुछ करना है, कॉम्बिनेशन यही है। डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा डालना है, गोल्ड भी लेना है और म्यूचुअल फंड में पैसा लाना है, लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन प्लानिंग के साथ। पहले फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन हम कर लें, फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन के हिसाब से फिर हम अपने उसको एसेट्स को डाइवर्सिफाई करते रहें और अपने स्टिक टू आवर गोल्स। एंड हमेशा याद रखें कि करेक्शन इज टेम्परेरी बट ग्रोथ इज परमानेंट। कंक्लूजन क्या है कि नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज रिस्कियर। इक्विटी में रिस्क है, बट क्या आप लहरों का शोर देख के समंदर पार नहीं करेंगे? बोट है, आप बैठेंगे बोट में, स्टीमर में, शिप में बैठेंगे, तो समंदर में रिस्क है, लेकिन किनारे पे बैठे रहने से ज्यादा रिस्क तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है। तो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज रिस्की, बट नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज मोर रिस्कियर। इट इज अ मैक्सिमम रिस्क, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हम कोई इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं कि जिसमें एफडी है, पीपीएफ है, इसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे रियल रिटर्न नेगेटिव है। मैंने डिस्कस किया रिटर्न माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन। तो हम कहते हैं कि ये एफडी में डाल दिया या किसी चीज में डाल दिया और हमारा सारा एक्सपोजर ही एफडी में है, डिवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ये नहीं मैं कह रहा कि एफडी निकल जाएंगे, पीपीएफ निकल जाएंगे, डिवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। मेरा जो पूरा कंसर्न है इस वेबिनार का वो डिवर्सिफिकेशन है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो रिस्क नहीं लिया, मेरा पैसा सेफ है। लेकिन जब आपको ये पता लग गया कि मेरी रियल रिटर्न नेगेटिव है, उससे बड़ा रिस्क है जो आप ले सकते हो। अब तो सबसे बड़ा रिस्क लेके बैठे हैं कि आपका रियल रिटर्न ही नेगेटिव, रियल रिटर्न ही रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स। तो रिस्क ये है, तो जिसके मैंने पहले दिखा था कि वोलेटिलिटी मार्केट में रिस्क नहीं है, सेविंग का जो रिटर्न है और जो लाइफस्टाइल आपकी जो इन्फ्लेशन है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन माइनस सेविंग रिटर्न इज द रिस्क, मार्केट इज नॉट द रिस्क। तो investment in equity is risky, but not investing in equity is riskier. Invest for long term as per your financial goals. Invest through mutual fund, better fund management है, professional management of funds है, diversification है, minimum risk है, liquidity है, transparency है, achievement of goals है। Don't try to time the market. Never try to time it. Nobody is smarter than market. तो कहते हैं कि बाजार पैसा बनाता है लेकिन लोग पैसा नहीं बनाते। बाजार तो बना रहा है, बाजार तो 100 रुपए 6,000 पे पहुंच गया, लेकिन लोगों का पैसा नहीं बनता। तो कहते हैं कि बाजार पैसा बनाता है लेकिन इन्वेस्ट जो लोग हैं वो पैसा नहीं बनाते, ठीक है। तो आप पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपने अपनी गोल प्लानिंग नहीं करी और गोल्स के साथ आप स्टिक नहीं रहे। स्टिक टू योर गोल्स, बाजार आपको पैसा बना के देगा। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, रादर बी इन द मार्केट फॉर अ टाइम, be in the market for a time till the date your financial goals are arrived. इन्वेस्ट रेगुलरली, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, वो 3 मैंने जैसे यंगस्टर्स की एग्जांपल दी थी। एक ने 30 साल 25 साल पे इन्वेस्टमेंट करी, 55 साल पे 30 साल के लिए, एक ने 30 साल पे स्टार्ट करी, एक ने 35 साल पे। स्टार्ट अर्ली, डोंट डिले, ठीक है, और इन्वेस्ट रेगुलरली। क्योंकि अगर आप देखिए इन्फ्लेशन रेगुलर चल रहा है, इनकम रेगुलर चल रही है, एक्सपेंस रेगुलर चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रेगुलर क्यों नहीं चल रही? इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर चलनी चाहिए। टेक द प्रोफेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम सब खुद प्रोफेशनल है, हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प लीजिए, एडवाइस लीजिए, सर्विसेज लीजिए कि वो आपको गाइड कर पाए, वो आपके लिए फाइनेंशियल गोल कैलकुलेशन कर पाए और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए, आपको दिशा निर्देश कर पाए, आपके लिए सूटेबल फंड सेलेक्ट कर पाए, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कर पाए, आपको एसेट एलोकेशन करके दे पाए और आपको कम से कम 11-12% की रिटर्न मार्केट से निकाल के दे पाए, और आपकी हैंड होल्डिंग रखे कि मार्केट ऊपर नीचे है। तो इसमें भी जैसे गाइड की एक जरूरत होती है, तो वी कैन आरसेल्फ बी अ गाइड, वी आर प्रोफेशनल्स, और या फिर आप किसी हेल्प ले सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। तो इसमें यहाँ पे हमें लगता है कि इसमें
आपका जो आपकी जो बाई व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे अभी हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, इक्विटी इन्वेस्टिंग है, रिटर्न्स हैं, मार्केट टाइमिंग है, फाइनेंशियल कोच है, आप खुद हैं, या समथिंग है। अगर हम इसको एनालाइज करें, हमें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है? डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग पिछले 1 घंटे में हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी डिस्कस किया, इक्विटी में इन्वेस्टेड नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी रिस्कियर, रिटर्न्स, वोलेटिलिटी, मार्केट टाइमिंग, फाइनेंशियल कोच, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकल के लोगों के आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो राइट आंसर देना मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है आप। बाकी सब चीजें बाद में आती हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कोच, इन्वेस्टिंग रिटर्न, मार्केट टाइमिंग, ब्ला ब्ला, सब बाद में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं, आपका योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर। अदर थिंग्स इन योर इन्वेस्टमेंट लाइक in investment journey like financial planning and coach and financial planner and equity investment return, everything comes next. आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, आपने स्टेड इन्वेस्टेड रहना है, आपने पैनिक करना है, आपने स्टेबल रहना है। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने दिखाया पीछे कि मार्केट कितनी बार करेक्ट हुई, 92 का, 96 का डेटा, 2000 का, 2004 का, 8 9 का, 13 का, 20 का, कोविड के टाइम का। तो मार्केट कितनी जल्दी रिकवर करती है, कितनी जल्दी वो यू टर्न लेती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि उसमें आप ही है कि जो पैनिक करके लॉस बुक कर जाते हैं, उसमें आप ही हैं जो एक्स्ट्रा पैसा डाल के और यूनिट्स खरीदते हैं और पैसा डालते हैं और अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी एंड इज वेरी बोरिंग। ये बहुत बोरिंग जर्नी है सर मैम, वेरी बोरिंग जर्नी। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आपको लगेगा कि हर साल हर महीने पैसा डाल ली जा रहे हैं, डाल ली जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी रिटर्न 2% दिखेगी, कभी 8% दिखेगी, कभी 15% दिखेगी, कभी भी 9% दिखेगी, लेकिन एवरेज आपका 12, 10, 12, 15% रिटर्न बनेगी। यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं है। हर साल आपको नहीं लगेगा कि लाख का मेरा 1,08,000 हो गया, फिर मेरा 1,15 हो गया, फिर मेरा 1,22 हो गया। ऐसे नहीं दिखेगा। कभी लाख का 1,22 दिखेगा, कभी 1 लाख का 1,08 दिखेगा, कभी 1,15 दिखेगा, कभी 1,40 दिखेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। बहुत सिंपल है, जितनी मैंने चीजें पिछले 1 1.5 आवर में बात आपसे जिक्र किया, बहुत सिंपल है। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत बट इजी नहीं है। बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, योर इमोशंस टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट मेक इट डिफिकल्ट टू क्रिएट वेल्थ। Always be careful about your behavior in the investment journey. That will decide how much wealth you will create from your investment. Always be careful about your behavior. Your behavior will create wealth for you. And last but not the least, इस चीज को हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, क्योंकि मार्केट में रिस्क है। लेकिन नॉट इन्वेस्टिंग इन मार्केट इवन मोर रिस्क है, जैसे मैंने पहले आपसे बात करी। तो इस रिस्क को आपको अपनाना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और ये रिस्क जो है ये मिटिगेट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे मैंने बोला कि 5 साल में कम रिस्क है, 10 साल में और कम है, 15 साल में तो खत्म नहीं हो जाता है। गोल्स आपके दूर ही होते हैं, पास नहीं होते हैं। एफडीज में हम देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर आपने 10 लाख का गोल्ड खरीदा, वो उसकी वैल्यू कोई 20 लाख रुपए, आप कभी नहीं बेचेंगे। आप कहेंगे भी बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। लेकिन इक्विटी मार्केट में 10 लाख लगाया, उसका 20 लाख होगा, आप इमीडिएटली रिडीम कर देंगे। क्यों? ये नीचे ना गिर जाए। ठीक है, ये पैसा नीचे ना मेरा गिर जाए दोबारा। ठीक है, क्योंकि फर्क क्या है? माइंडसेट का फर्क है। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट 1 लाख रुपए का 6 करोड़ 93 लाख हुआ। मैंने पीछे दिखाया था सेंसेक्स 1979 पे 100 रुपीज से शुरू होके आपका 66,000 पे पहुंच चुका है। तो गोल्ड में 10 का 20 बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुश रहेंगे, स्टेट इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन मार्केट में 10 का 20 पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि मार्केट तो लाख रुपए का 7 करोड़ बना चुकी है। मार्केट तो और बढ़ाएंगे और बनाएगी। माइंडसेट का फर्क, सिर्फ वो माइंडसेट आपने प्लेस करना है इस चीज के साथ, उसको अटैच कर। दैट्स ऑल। You already are long term investor, we all are long term investors, our forefathers are long term investors। लेकिन चाहे टाइम इज चेंजिंग, वी हैव टू चेंज विद द टाइम। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, अभी अभी क्या है कि आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कीजिए, इकोनॉमी से ग्रोथ लीजिए और
बाकी ये जो भी मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया है, दिस फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट फॉर एनी प्रोफेशनल एडवाइस। ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, ये मेरी एक बेस्ट एफर्ट है। मैंने जो इसके डेटा के ऊपर जो सर्च किया है वो आपके सामने प्लेस किया है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। प्लीज यूज योर please take financial advice from your financial advisor or use your discretion before investing. So this presentation is only for education purpose. So with this, I end my presentation, and that's it from my side. I try to present wealth creation through mutual fund in detail, and appreciate all of you for your patience. Thank you. Thank you so much, sir, for such a great session. Thank you so much, sir, for explaining all the topics in such an interesting manner and in a very simple manner. We could like understand each and everything. Then we got a chance to learn so many things from you in such an interesting manner. It was a great presentation, sir. Now I would like to thank Nanda, sir, our chairman, sir, Srinivas, sir, our vice chairman, sir, Animesh, sir, Ashok, sir, Giver, sir, and the entire team of Committee on Financial Markets and Investor Protection for organizing this great session. And thanks to guest speaker Anand, sir, for taking up this session. It was a pleasure to have you all with us. So this concludes our seminar. Thank you all for attending. We hope you all have learned and enjoyed this webinar. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Anand. Thank you, team.